बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, दुनिया का कायनात का सबसे अजीम जो नाम है उन ई नाले सां गॾु असां साह खणूं था। उन ई नाले सां असां सलाड़ियल आहियूं ऐं उन ई नाले सां शुरू करियूं था पंहिंजे हर सिलसिले तकल्लुम वांगुरु। पंहिंजे हर बज़्म, हर महफ़िल, हर मजलिस जो आगाज़ उन ई नाले सां कजे ऐं उन ई नाले सां कबो आहे त उहो भलारो आगाज़ थींदो आहे। सो अस्सलामु अलैकुम, हक़ मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा एंड वेलकम टू क्लास नंबर 20 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, which is initiated by the camp office of Sindhi Language Authority at Karachi, Sindh. And right now we are talking to the world from Karachi. So if we glance over the main, neighbors and not only neighbors, but main countries and continents right now, which time they are watching and which time they are breathing, dwelling right now. This is 5:03 p.m. in Pakistan, 5:33 p.m. in India. This is 4:03 p.m. in Shamil Chali, Tremitian, Gadel Arab Riyasat mein Muttahida Arab Emirat, United Arab Emirates. This is the 3:03 p.m. in Hijaz Muqaddas, Makkah Madinah mein Balepara mein ye waqt thyo hai in Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:03 p.m. in London and the rest of the parts of the United Kingdom. On the United Kingdom je ज़ेर तसल्लुत जेके रियासतूं आहिनि उते हिन वक़्तु 12:03 थिया आहिनि, 7:03 थिया आहिनि सुबुह जा वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, ईस्ट कोस्ट इहो अमेरिका जो चवराइबो आहे। असां जेकॾहिं नाइग्रा फॉल्स क्रॉस कंदासीं त जेको कैनेडा जो टोरंटो वारो इलाइक़ो आहे, जेको हुनजो बिल्कुलु हेठां पासो आहे, त उते इट इज़ 7:03 AM इन द मॉर्निंग, नाउ 7:04, छाकाणि त हिते 5:04 थी चुका आहिनि। जेकॾहिं असां ओभर तरफ़ यानी दूर ओभर तरफ़, असां बि ओभर में आहियूं, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईस्ट, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि मशरक़ से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो और ज्यादा मशरक़ में अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल मशरक़ का एंड जो है, जिसको फार मोस्ट ईस्ट कहते हैं, वो है पैसिफिक, जहाँ से पैसिफिक स्टार्ट होता है, और वो आखिरी मुल्क जो है वो है जापान, और आखिरी शहर है टोक्यो। तो टोक्यो में इस वक्त 9:04 रात के हुए चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा और नीचे चले जाएं, जो कि वेस्ट का हिस्सा काउंट होता है, लेकिन बहरहाल ये पैरेलल टू जापान। आप नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ आ जाएं, दक्षिण तरफ अची वञो त राति जा 11:04 थिया आहिनि ऑस्ट्रेलिया में, यानी सिडनी, ऑकलैंड है उनजे ॿियनि शहरनि में, एंड अदर सी लॉक्ड कंट्री इज न्यूजीलैंड, जहां पर रात के 1:05 हुआ चाहते हैं। तारीख तब्दील हो चुकी है वहां पर, और वहां पर इस वक्त जो लोग हैं वो सांस ले रहे हैं 26 जनवरी में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह से बाजार नाल से शुरू। वेलकम टू ऑल who have joined us. Eileen is there, Aisha Khan Saiba, Asif Iqbal is there, Faizan Ahmed Saab is there, Fazila Qasim Saiba is there, Karim Saab is there, Mohammad Hamza Saab is there, Maqsood Ali Saab is there, Masood Ahmed Saab is there, Mohammad Imran Zakriya Saab is there, Mohammad Sharjeel Saab is there, Nadeem Saab is there, and Amataba Shazia Siraj Saiba is there. And I hope that the rest of the friends will join us soon. So welcome to this class number 20. As I told you that this is class number 20 of Sindhi language learning, and this is the fourth class of the week. और ये हफ्ता कौन सा है, अगर हम काउंट करें तो वैसे तो चौथा हफ्ता, लेकिन अगर 29 दिसंबर को भी काउंट करेंगे तो यकीनी तौर पर ये 5वां हफ्ता है जब हम आपसे मुखातिब हैं। This course is initiated by Sindhi Language Authority. On the top you can see, and below that you can see Sindhi Boliye Jo Baakhtiar Idaro, Muqtadra Sindhi Zuban, whose head office is in Hyderabad, but right now we are communicating from Karachi office, Karachi camp office of Sindhi Boliye Jo Baakhtiar Idaro. This is Hindi learning course online, and this is class number 20. This is Khamisa. I told you that Homs is 5, and from 5, it is derived that this is the 5th day of the week, and Panj Shamba, जिसको जुमेरात बोलते हैं हम, जुमेरात भरी मुराद। तो ये जुमेरात का दिन है, रात भी कह रहे हैं और दिन भी कह रहे हैं, जुमेरात का दिन है, यानी खमीस जो निया है। This is 25th of January 2024, and this course is brought to you on every from Monday to Friday at 5 p.m. as per Pakistan Standard Time till 6:30 p.m. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह से बाजार नाले से शुरू जेको असांजी सोच कमंदी के साथ मेहरबान है, और उसी की रहमत के साए की तलब हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, और उम्मीद है कि उसकी रहमत का साया हमेशा हम सब पर साया फिगन होगा।
अवल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धणी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू, राज़िक रब रहीम, सो सारा है सचो धनी, चई हमद हकीम, उसी सच्चे मालिक को सराहो। और कैसे सराहो? चाहिए हमद हकीम कहकर उस हकीम हिकमत से भरपूर ज़ात की हमद को अपने ज़ुबान पर लाकर और अपने लबों पर लाकर, करे पाण करीम जोड़म जोड़ जहान जी, ये जो पूरे जहान की, पूरी कायनात की जोड़, पूरी कायनात की तख्लीक उसने जोड़े से की है, ये क्यों कर की है, ये उसकी हिकमत वो खुद ही जानता है। करे पाण करीम, वो खुद ही जानता है। ये कलाम है उस ज़बान के सबसे अजीम शायर का कि जिस ज़बान को आप सीख रहे हैं, सिंधी के सबसे बड़े शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, और उनके कलाम के मजमूए को कहा जाता है शाह जो रिसालो, यानी शाह जो शाह का कलाम। रिसाला लफ्ज़ जो है, रिसाला ये लफ्ज़ अरबी का है और उसका मतलब है पैगाम। ठीक है, तो शाह शाह जो पैगाम है, तो शाह लतीफ़ का ये पैगाम है। और उनके कलाम के पहले चैप्टर जिसका नाम है सुर कल्याण, उसका पहला ही जो इब्तदाइया है, उसकी इब्तदाई शायरी यही है, अवल अला अली। तो जनाब हमारा पहला सेगमेंट हुआ करता है आज जो लफ्ज़, आज का लफ्ज़। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। आप अपने जहन को तैयार कर लीजिए अपने जो आपके TR नंबर्स हैं उनके हवाले से, यानी जिसका TR नंबर अगर 13 है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं 13 हूँ, मैं नंबर 13। जिसका 24 है उसको पता होना चाहिए कि मैं 24 हूँ। जिसका 1 है तो उसको पता होना चाहिए 1, वो 1 है। मैं क्लास के किसी भी मोड पर रेफर कर सकता हूँ और जगा सकता हूँ अचानक से कि फला नंबर फला सवाल के जवाब दें। तो कैन आई सी रोल नंबर TR नंबर 26 राइट नाउ हियर? क्या TR नंबर 26 हमारे साथ मौजूद हैं? अगर आप मौजूद हैं तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट लेट मी लिसन योर वॉइस। TR number 26. Do we have TR number 26? Do we have TR number 13? 13 right now? Do we have TR number 13 right now? If you are there, अस्सलाम unmute वालेकुम yourself. सर। Walaikum salam, sir. Are you TR अस्सलाम number वालेकुम 13? सर। Walaikum salam, sir. यस सर, TR नंबर 13 सर। Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। यस। Do we have TR number 4 right now? TR number 4, do we have? No, we don't have. Do we have TR number 6 right now? Do we have TR number 6? Can I listen to TR number 6? No. अच्छा, असां वटि TR नंबर 1 मौजूद है। TR नंबर 1 है। TR नंबर 1, TR नंबर 1 is there. TR number 1 is there. Do we have TR number 11? 11. Yes, sir. Do we have TR number 21? 21, 21. 21. Do we have TR number 18? 18. 18. Okay. ओके जी, थैंक यू। कौन बताएगा मुझे कि कल हमने क्या कुछ पढ़ा था, पूरी क्लास के दौरान क्या कुछ हुआ था? कैन एनीबडी रिमाइंड मी क्विकली? क्विकली कैन एनीबडी रिमाइंड मी? मसूद अहमद साहब, कैन यू रिमाइंड मी कल हमने क्या पढ़ा था? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। कल हमने पढ़ा था सर जकड़ियल सोगु नहीं, वो तो लफ्ज। मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ओवरऑल शक्ल क्या थी पूरा महांड्रो छा वो क्लास जो छा पढ़े हुए से सर वहाँ? एक तो ये वर्ड पढ़ा था, जी दूसरा हमने सर उसमें जुमला पढ़ा था एक मुकम्मल के छो न केडा घुमण हल जे सर। ठीक है सर। उसके बाद सर आपने मार्क्स आई एम वगैरह। नॉट आस्किंग अबाउट वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे। वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि कल लफ्ज कौन सा पढ़ा था। मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि कल पूरे 1.5 घंटे में हमने क्या किया था। तो ओवरऑल कैन यू टेल मी नंबर 1 2 3 हमने ये किया था इन रेगुलर सेगमेंट्स के अलावा? ठीक है सर, ये वर्ड था, जुमला था सर। उसके अलावा सर मार्क्स बताए थे आपने सबके। सर उसके अलावा जो है आपने लास्ट में सर वो छठी जदवल पढ़ाई थी जो मद की जदवल है सर, कुछ उसमें मुख्तसर हमने पढ़ा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई बताएगा कि कल जो है वो अजी जो लफ्ज हमने क्या पढ़ा था? आज का लफ्ज हमने क्या पढ़ा था? आज का लफ्ज कल कौन सा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। आयशा खान। आयशा खान साहब, आप ठीक हैं? जी सर, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है जी। आयशा खान, क्या पढ़ा था हमने कल? जी जी सर। सर सोगो, सोगो क्या है? सोगो सोगो और क्या है? जकड़ियल, सोगो। टाइट टंग होना।
अच्छा, और उससे एक दिन पहले हमने क्या पढ़ा था? अ, वो हमने इसी से मुतालिक था, कोई इसी वो से रिलेटेड था? जी जी वो था ढीला, ढीला। उसका था डारा। ढरा, ढरा तो था जमा में, धरा, प्लूरल में, सिंगुलर में होगा ढरो, राइट? धरो। ढरो। थैंक यू मच जी। वकास, वकास साहब। लिख के दे रहा सर। वालेकुम सलाम सर। लिख के दे दे सर जी कल वकास तव्हां साहब। जेको आहे सो हम्म, मध पढ़ाया हुआ कल, ऐं हम्म, जुमिलो ऐं जेको मार्क्स हुआ मार्क्स ॿुधाया हुआ सभिनि जा, त हम्म, टोटल मार्क्स केतिरा थी विया आहिनि, हम्म। जुमिलो ऐं जेको आहे सो ठीकु आहे मुंहिंजा साईं, वॾी हिकिड़ो महिरबानी ॾींहुं पहिरीं वकास। ढेरो पढ़ायो, कल जेको आहे सो तव्हां उहो पढ़ायो जेको आहे सो टाइट करणु जकड़नि ठीकु आहे, गॾियल। ठीकु आहे मुंहिंजा साईं, वॾी महिरबानी, थैंक यू। तो हमने कल पढ़ा था टाइट का सिंधी लफ़्ज़ है, वो पढ़ा था कि काई बि शइ जकड़ियल हुजे, काई बि शइ सोगी हुजे त उनखे छा चइबो आहे। उन खां हिकिड़ो ॾींहुं पहिरीं असां पढ़ियो हुयोसीं, जीअं ॿुधायो असांखे आयशा ख़ान, त ढरो या ढरा पढ़ियोसीं। व्हाट वाज द अदर वर्ड फॉर ढरो या ढरा? कैन एनीबॉडी टेल मी? देयर वाज अ साइनोनिम, मैंने दो अल्फाज पढ़ाए थे, दूसरा लफ्ज़ कौन सा सर, था? वालेकुम सलाम मैम। शादी सिराज। शादी साहब ठीक हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है। क्या पढ़ा था अदर वर्ड इसका? सर सेकंड वर्ड था इसका ढिलो। ढिलो। और उसका प्लूरल क्या था? जी ढिला। ढिला। बहुत सारे हो तो ढिला। बहुत शुक्रिया जी शादी साहबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जनाब आज हम एक ऐसा लफ्ज़ पढ़ते हैं जिस लफ्ज़ से आप मानूस हैं, क्योंकि उसका जिक्र हम कर चुके हैं, बल्कि उसके रंगों का भी जिक्र तफसील से कर चुके हैं। गुत्ता पसानो आपने पढ़ा, वेबगियर आपने पढ़ा, स्पेक्ट्रम का हमने जिक्र किया, और वो रंग थे धनक के, ठीक है, धनक के रंग थे, कौस कज़ा के रंग थे। हमने जिक्र किया था इस लफ्ज़ का, यानी वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए या वो वेबगियर पढ़ते हुए, वो वेबगियर असल में जो कलर्स थे वो धनक के ही रंग थे, रेनबो के कलर्स थे। और उसका मैंने जिक्र किया था जब मैंने ये भी बताया था आपको कि ये अपने फोनोटिक्स के लिहाज से बड़ा सख्त लफ्ज़ है, हालांकि धनक के जितने रंग हैं वैसा ही रंगीन कोई लफ्ज़ होना चाहिए था सिंधी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो उसका लफ्ज़ है वो उसके फोनोटिक्स के साथ मैच नहीं करता, लेकिन जो भी है उसके साथ गुजारा करना है। तो वर्ड ऑफ द डे में आज उसको पढ़ने का मतलब ये है, मकसद ये है कि हाउ टू राइट इट हम ये सीख सकें, हाउ टू राइट इट, उसको लिखा कैसे जाता है और उसको बोला कैसे जाता है, राइट? आपको याद होगा मैंने इंडेलेट का जिक्र किया था, मैंने कौस कज़ा के लिए अदर वर्ड जो था सिंधी में उसका जिक्र किया था, तो वो था लफ्ज इंडेलेट है। आई होप ये लफ्ज आपने वर्ड ऑफ द डे में नहीं पढ़ा, राइट? ये इसका जिक्र जरूर निकला है, ज़ाहिर है कि जब हमने वेबगियर का जिक्र किया या जब हमने स्पेक्ट्रम का जिक्र किया था, तो इसको नोटेड डाउन फॉर योर क्लैरिफिकेशन ऑफ इमला, जिसको सिंधी में सूरत खती कहते हैं, या फिर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्लैरिफाई करने के लिए राइट इट डाउन, लुक एट द वर्ड हाउ इट इज रिटन, और बॉटम में देखिए कि इसको प्रोनाउंस किस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल बॉटम में देखें कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। दिस इज इंडेलेट, ठीक है, ये लफ्ज है इंडेलेट, IND एपोस्ट्रॉफी A, ये इसका पहला हिस्सा है। ये डैश जो है वो ये जाहिर करता है कि ये इसका पहला हिस्सा है। डैश का मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई मुरक्कब लफ्ज है या दो लफ्जों पर मुश्तमिल एक लफ्ज है, एक ही लफ्ज है, लेकिन डैश आपकी वजाहत के लिए कि पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। इंड IND एपोस्ट्रॉफी A शोज जबर, डाल पर जबर, जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर देखें, अलिफ और नून, ये नून होना है, ठीक है, ये इसके साथ इन अलिफ और नून जेर के साथ मिले हुए, डाल पर जबर, ये पहला हिस्सा हो गया इसका। इंड, इंड, देखें नीचे भी यही है इंड। उसके बाद दूसरा हिस्सा है लठ, लाम पर जबर, ठे पर जेर, लठ, नीचे भी यही लिखा है LATH, लठ, बल्कि अपोस्ट्रोफी ई होना चाहिए, लठ, ताकि क्लियर हो सके, ये जो जेर का इसका सुर है वो क्लियर हो सके। इंड लठ, विच मीन्स धनक या कौसे खजा, राइट? अच्छा, मजेदार बात यह है कि अगर इंड निकाल लें इसमें से, खाली लठ हो, तो लठ छड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाठी के लिए भी इस्तेमाल होता है। लठ इज द ट्रांसलेशन ऑफ लाठी,
यानी जब कोई शेफर्ड, जब कोई चरवाहा बकरियां चराता है या भेड़ें चराता है या भैंसें चराता है या कोई भी चौपाया माल जो है वो चराता है, तो वो हाथ में लठ रखता है, हाथ में लाठी रखता है, हाथ में स्टिक रखता है। तो इसमें से आप दो अल्फाज कार्व कर सकते हैं। अगर एंड हटा दें, खाली लठ हो, लठ मीन्स स्टिक, लठ मीन्स स्टिक, किसी भी किस्म की स्टिक हो वो लठ कहलाती है। जो घूमने में सहारे के तौर पर इस्तेमाल होती है वो भी लठ कहलाती है। लठ यानी लाठी, ठीक है, लाठी या स्टिक, खाली लठ। पता नहीं ये इंडलट के साथ लट क्यों लगा हुआ है, हालांकि उसमें शायद इस स्ट्रिप को या पट्टी को लट कहा गया है, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल ये इसका नाम है इंडलट, गो के बड़ा फोनेटिकली बड़ा सख्त लगता है, कानों को चुभता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए ऐसी खूबसूरत हसीन और रंग बिरंगी वेबगैर के लिए बड़ा सा कोई हसीन सा नाम होना चाहिए था जिसमें खुद रंग होने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल ये लफ्ज़ है और इंडिजीनियसली हमें मिला है तो इसी को इस्तेमाल करना है। तो धनक की जगह पर या रेनबो की जगह पर वेन एवर यू वॉन्ट टू कोट, you have to quote. If you want to use this word in Sindhi, so the Sindhi word for dhanak or qasi-qaza is indalat, indalat, right? It has nothing to do with Indus, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिगो या इंडिया या इंडस्ट्री, ये उससे नहीं है। लेकिन बहरहाल इंडलट जो है वो qasi-qaza को कहा जाता है। अलिफ नून दाल, अलिफ पर जेर, अलिफ और नून आपस में मिले हुए एक ही सुर में, नून के साथ मिला हुआ जेर के सुर में, और फिर डाल पर जबर इंड, फिर लाम पर जबर ठे पर जेर, इंडलठे यानी कौसे कजा। ठीक है, कौसे कजा, कौसे कजा कहा जाता है इंडलठ, कौसे कजा को सिंधी में कहा जाता है इंडलठ, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, regarding word of the day? Otherwise we will move forward. Can I listen the voice of TR number 12? Is TR number 12 with us? क्या TR number 12 हमारे साथ मौजूद है? Is TR number जी are you TR number 12, sir? Hello. Sir, are you TR number 12? Yes, sir. Thank you. बहुत शुक्रिया। Can I? Maqsood Ali, sir. Yeah. Sir, don't take your name. When I'm quoting TR number, it means it should be TR number only, right? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. TR number Thank आप किसी और को जाहिर ना करें, क्योंकि ये मतलब कोई any outsider should not know that which TR number is allotted to whom, right? वो TR number is between you and me. When I'm quoting TR number, just quote TR number. When you are asking your question, then quote your name, right? So, Okay, sir. thank you. Can I listen the voice of TR number 6? Is TR number 6 with us? Yes, sir, I'm in. Okay, thank you. Okay, ji. Now moving towards sentence of the day. आज जो लफ्ज और उसके बाद आज जो जुमलो, आज का जुमला, the sentence of the day. आज जो जुमलो, इसको भी याद करना है आपने ना। आज का जुमला को सिंधी में क्या बोलते हैं? आज जो जुमलो। आज का लफ्ज को सिंधी में क्या बोलते हैं? आज जो लफ्ज, आज जो बोल तो नहीं गया आप, लफ्ज को सिंधी में बोल बोला जाता है। आज जो लफ्ज की जगह पर होना चाहिए आज जो बोल। तो आई रिक्वेस्ट माय टीम टू चेंज दिस स्लाइड एज आज जो बोल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज जो बोल, आज का लफ्ज आपको पता होना चाहिए कि वर्ड ऑफ द डे को सिंधी में क्या बोलते हैं और सेंटेंस ऑफ द डे को सिंधी में क्या बोलते हैं। अगेन एक बेतकल्लुफ किस्म की गुफ्तगू चल रही है हमारी, यानी आप मुखातिब हैं जब, यानी सेंटेंस ऑफ द डे की बात कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त से या अपने किसी कलीग से आप बात कर रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं और बहुत ही बेतकल्लुफ अंदाज में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा आपने काम से काम रखो, मैंने कम से कम रखो। आपने कहा कि छो न किना घूमण हल जे, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। तव्हां खाइण में छा पसंद कंदा हो, हैप्पी न्यू ईयर तो आपने पहले ही कह दिया था उनको। फिर हालचाल पूछा, फिर तबीयत पूछी, फिर आप कहाँ रहते हैं, सब कुछ पूछ लिया आपने। ठीक है, ज़ाहिर है कि ये चीज़ें आप उनसे पूछते हैं जिनसे आपका नया तारुफ होता है। और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू आगे चल रही है तो कभी कभार आप घर में, बल्कि रोज़ाना ये सवाल हम करते हैं कि आज खाने में क्या पकेगा। तकरीबन हर फैमिली मेंबर पूछता है, यानी घर जो वो फर्द जंहिंखे ॿाहिरां सौदो सल्फ आणणो हूंदो आहे उहो इन करे पुछंदो आहे त ॿाहिरां छा ईंदो, यानी मानी में छा पटाटो, ज़ाहिर आहे बसर पटाटा जेके बि ईंदा तो उनखे आणणा हूंदा आहिनि। और हेड ऑफ द फैमिली बीइंग आवर मदर और जो भी हमारे घर के सरबराह हैं वो इसलिए पूछते हैं ताकि
बच्चों का मूड मालूम हो सके, घर के अफराद का मूड मालूम हो सके, क्या पकेगा, आज क्या पकना है, तो आज खाने में क्या पकेगा। दैट इज नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर लंच और डिनर, लेकिन वो वैसे ही पूछ रहे हैं कि आज खाने में क्या पकेगा। जाहिर है कि ये सवाल अगर दिन के सुबह के 10-11 बजे हुआ है, नाश्ते के बाद हुआ है, तो इट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये लंच के लिए सवाल है। और अगर शाम में ये सवाल किया गया तो इट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये रात के लिए सवाल किया गया है। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आज खाने में क्या पकेगा। सबके अलग अलग मूड्स होते हैं। व्हाट टू कुक टुडे, व्हाट टू कुक टुडे, व्हाट हैज टू बी कुक्ड टुडे, मुख्तलिफ अंदाज में कहा जा सकता है। उसको सिर्फ कहा जा सकता है आज दोपहर खाने में क्या पकेगा, आज रात के खाने में क्या पकेगा, लेकिन उसको सिंपलेस्ट हमने रखा है, आज खाने में क्या पकेगा। तो खाने को बोलते हैं सिंधी में मानी। एक तो मानी जो है वो चपाती को भी बोलते हैं, जो ब्रेड है उसको भी मानी बोलते हैं, मानी उसको भी बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक लंच है, लंच को भी मानी बोलते हैं। मानी खाइंदा हो मीन्स खाना खाएंगे, खाने को भी मानी कहते हैं, यानी जिसमें रोटी हो, सालन हो, चाहे चावल हो, इसको ओवरऑल को भी मानी कहा जाता है। क्या कर रहे हैं, मानी तो खाए। मानी तो खाए इज नेसेसरी, दैट डज नॉट मीन कि वो चपाती खा रहे हैं या नान ही खा रहे हैं, वो चावल भी खा रहे हो। तो खाने को, लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, उसको कहते हैं मानी खाएं। ठीक है, बट बेसिकली ये बात समझने की जरूरत है, मानी कहते हैं उस गोल रोटी को जो चपाती है, उसको मानी कहा जाता है। घड़ियों मानियों कितनी चपातियां, ठीक है, कितनी रोटियां, जो रोटियां पकती हैं, जो बेली जाती हैं और तवे पर पकती हैं, उसको भी मानी कहा जाता है। एक मानी, ब मानियूं, टे मानियूं, हिक मानी, ब मानियूं, टे मानियूं, चार मानियूं, घड़ी मानी पचंदियूं, 10 मानी पचंदियूं, 10 रोटियां पकेंगी। तो उस रोटी को भी मानी कहा जाता है। और जब कोई तनावुल कर रहा हो, कोई भी किसी भी एक टाइम का खाना, या आप पूछें किसी से तो मानी खाइंदा हो, चाहे उसमें चावल हो, चाहे उसमें खिचड़ी हो, चाहे उसमें चिकन शॉशलिक हो, चाहे उसमें नूडल्स हो, लेकिन वो आप अगर ये पूछना चाहेंगे कि लंच करेंगे, लंच अभी करेंगे या बाद में करेंगे, तो कहेंगे आप मानी खाइंदा हो, मानी हाने खाइंदा हो। तो मानी दो तरह से इस्तेमाल होती है, दो सेंस में। एक ब्रेड के लिए, यानी उस चपाती के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे चपाती हो, चाहे चावल की रोटी हो, या गंदम की रोटी हो, या मकई की रोटी हो, उसके लिए भी मकई जी मानी, चावल जी मानी, जुअर जी मानी, तो उसको भी मानी कहते हैं। और एक वक्त के खाने को भी मानी ही कहते हैं, तो ये जहन में होना चाहिए। तो अज मानी, यहाँ पर मानी जो है वो उस टाइम के खाने के बारे में पूछा जा रहा है। बेशक इसके जवाब में चावल ही क्यों ना आए, चावल ही क्यों ना कहा जाए इसका जवाब, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है, वो सेंस ये है कि अगला जो टाइम है, चाहे वो लंच का हो या डिनर का हो, उसमें क्या पकेगा। ठीक है, अज मानी में छा पचंदो, खाली अगर कहेंगे, सिर्फ नाम लेंगे तो कहेंगे मानी, लेकिन इस किस्म के जुमले में हम उसके साथ हमजा जबर लगाएंगे, अजमानिया में छा पचंदो। अज मीन्स आज, ये जिब्ब है जो आपके लिए मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना, ये जिब्ब मीन्स जबान, टंग, ये जिब्ब। अज मानी मानी मानिया में छा, क्या छा है क्या, पचंदो, अजमानिया में छा पचंदो। अगर इसकी आराबें आप समझना चाह रहे हैं, आई होप यू कैन सी माई स्लाइड, तो इसको मैं आसान कर देता हूं। अलिफ पर जबर है, ये पर पेश है, मीम और अलिफ जबर के साथ मिले हुए हैं, नून और ये जेर के साथ मिले, उसके बाद है हमजा जबर अ, उसके बाद है में। उर्दू में मीम ये गुन्ना के तौर पर लिखा जाता है, सिंधी में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छा मीन्स क्या, छा इज क्या, छा पचंदो। ठीक है, छा जो है अलिफ के साथ जबर के साथ मिला हुआ है, पे पर जबर, चे और नून जबर के साथ मिले हुए, चन ये गुन्ने के साथ मिला हुआ है, दो दाल और वाव जबर के साथ मिले हुए। अज मानिया में छा पचंदो, आज खाने में क्या पकेगा। अज मानिया में छा पचंदो, आज खाने में क्या पकेगा। इज इट क्लियर। अज अलिफ पर जबर, ये पर पेश, अज मानी मीम अलिफ जबर के साथ मिले हुए, और नून ये जेर के साथ मिले हुए, उसके बाद हमजा जबर, तो ये है मानिया। मानी अलग नहीं कहा जाएगा, मानिया, अजमानिया, अजमानिया, ये है में, मीम के नीचे दो जो है वो जेर लगी हुई है, लेकिन इस तरह से में इस तरह से लिखा जाता है। सिंधी में दो
अजीब अल्फाज हैं, वो मैं अगली स्लाइड पर आपको बताऊंगा आपकी वजाहत के लिए। वो थोड़े से डिफरेंट अंदाज में लिखे जाते हैं, जिस तरह से उर्दू में भी नहीं लिखे जाते और फारसी और दीगर में भी। अरबी में कहीं कहीं पर जो है वो इससे मिलते जुलते अल्फाज लिखे जाते हैं। तो माइयो आगे समझाएंगे तो वह लफ्ज़ कह रहा है। तो मानी में, दिस इज में। उसके बाद छा, छे, और ये आपको पता है कि चे और हे का जो मरकब हर्फ है उर्दू में, उसी को मिलाकर छे लिखा जाता है। और उसके साथ अलिफ, छे और अलिफ छा, पचंदो पे पर जबर, चे पर जबर, और चे नून के साथ मिला हो, पचन चन, दाल और वाव जबर के साथ मिले। अजमानिया में छा पचंदो, आज खाने में क्या पकेगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस स्लाइड, अबाउट वर्ड ऑफ द डे और उसके साथ साथ सेंटेंस ऑफ द डे? कोई अगर सवाल हो तो कर लें। वो दो जो अजीब अल्फाज आपको बता रहा हूं वो ये हैं। एक तो आपने अभी पढ़ा में, ठीक है, और दूसरा है आए। मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि वो कौन से हैं दो अल्फाज। एक तो है में, ये जो आपने पढ़ा में, ये मीम है, मीम के नीचे ये मीम है, मीम के नीचे दो जेर है, लेकिन खड़ी जेर इसको कहा जाता है, खड़ी जेर। ये जेर इस तरह से नहीं, खड़ी जेर है। ये शो करता है उर्दू में जैसे मीम ये नून लिखा जाता है, मीम ये नून गुन्ना लिखा जाता है, ये में है। उसकी मीनिंग भी वही है, में मतलब विदिन, के अंदर, में अंदर, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा जो अजीब लफ्ज है वो है आए, वो भी इसी की फैमिली से ताल्लुक रखता है। आए, आए का मतलब है और, आए का मतलब है और, आए इस तरह से लिखा जाता है। हमजा, हमजे के नीचे दो खड़ी जेर, में आए, आए। ये सिर्फ दो अल्फाज हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, जो थोड़े से अजीब अंदाज में लिखे जाते हैं, डिफरेंट अंदाज में लिखे जाते हैं, जिस तरह से उर्दू में नहीं लिखे जाते। दीज आर द यूनिक स्टाइल्स ऑफ राइटिंग इन सिंधी ओनली, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, एनी सिस्टर लैंग्वेज। उर्दू और सिंधी को हम सिस्टर लैंग्वेजेस कह सकते हैं, बल्कि एक मदर लैंग्वेज है, एक उसकी डॉटर लैंग्वेज है, लेकिन उसमें भी इस किस्म के अल्फाज नहीं हैं। ये दो डिफरेंट और यूनिक अल्फाज हैं जो आपने बार बार इस्तेमाल करने हैं। जब कभी आप रवानी में सिंधी लिखेंगे या बोलेंगे तो उसमें ये दो अल्फाज आएंगे। आए का मतलब है और, आए का मतलब है और, असलम और सलीम, असलम आए सलीम, तो उसमें दरमियान में असलम और सलीम के दरमियान ये आएगा आए, एंड, इट मींस एंड, ठीक है। तो ये आपने ज़हनशीन करना है। और मे का मतलब है विद इन, मे का मतलब है इन, मे का मतलब है अंदर, में वही मायनी है जो उर्दू में है, लेकिन उसको लिखा इस तरह से जाएगा, उसका इमला मुख्तलिफ है। इन दो अल्फाज का, ये अल्फाज हैं, बज़ाहिर हुरूफ हैं लेकिन ये अल्फाज हैं। दो हुरूफ पर नीचे दो खड़ी जेर लगी हुई हैं, लिहाजा इनकी जो हैयत है वो तब्दील है, ठीक है। तो ये दो अल्फाज हैं, यूं ना समझे हुरूफ हैं, क्योंकि ये पूरा एक आवाज पूरी क्रिएट कर रहे हैं। यानी आवाज ऐसी क्रिएट करें जैसे मीम के बाद ये है मी, लेकिन में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, में ऐसे लिखा जाएगा। ये दो आप अजबर कर लें, अलग से हाशिए में लिख लें कि इन दोनों की कंडीशन यूनिक है। में यानी विदिन, अगर हम लिखेंगे मैं कराची में हूं, मां कराची में आया, तो वहां पर में ये आएगा। फला 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 और फला, तो सिंधी में होगा फलाणो 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 ऐ फलाणो। तो ये जो ऐ है, ऐ जो है वो और की मीनिंग में इस्तेमाल होगा, एंड की मीनिंग में इस्तेमाल होगा। में जो है वो इन की मीनिंग में इस्तेमाल होगा। ये दो यूनिक अल्फाज हैं। इस जुमले में ये लफ्ज आया तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये अलग से बता दूं, क्योंकि बार बार ये अल्फाज आएंगे, मुख्तलिफ जुमलों में ये अल्फाज आएंगे। मेरे ख्याल में इससे पहले सेंटेंस ऑफ द डे में ये लफ्ज नहीं आया था, वरना इसकी वजाहत पहले ही हो जाती। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अब तक की स्लाइड्स में जितनी भी बातें हुई उनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? You can unmute yourself, you can mention your name, and then you can put forward your question. Is it clear? Word of the day and sentence of the day. Is it clear? I hope that is clear. और आपने ये भी देख लिया में और आए, में और आए, ये माए नहीं है, ये में और आए। उर्दू में भी में और मैं की मीनिंग में फर्क है। मैं यानी मैं का मतलब है विद इन, में, ठीक है। उसमें मैं जाऊंगा, उस मेले में मैं जाऊंगा, उस मेले में जाऊंगा नहीं होगा। फर्ज करें कि उस कॉन्फ्रेंस में मैं जाऊंगा, तो आप दोनों माए भी नहीं करेंगे, दोनों में भी नहीं करेंगे। एक में होगा, में का मतलब है विद इन, ये उर्दू दान भी समझ लें, ठीक है।
में का मतलब है अंदर, मैं का मतलब है मी, ठीक है। उस शहर में मैं नया था, तो आप कहेंगे पहला में कैसे है, जरा गौर से सुने। उस शहर में मैं नया था, तो में और मैं में फर्क है। तो ये जो है वो मैं नहीं है, ये में है। मीम के नीचे दो खड़ी जेर, और उसका मतलब है इन, विद इन, अंदर, में। और ऐ जो है वो हमजे के नीचे दो खड़ी जेर, उसका मतलब है और, एंड। जब कभी दो चीजें बाइफरगेट करनी हो तो वहां पर होता है दिस एंड दैट, या बहुत सारी चीजें हो तो उसमें आखिरी से पहले, सेकंड क्लास के बाद ऐ आता है। दिस 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 ऐ दिस। Is it clear? Any questions? If you have any questions, you can ask. Otherwise, we'll move जी forward. सर नदीम सो जी नदीम साहब। हाँ सर यो ये जेके इन्हनि जो जेको उचार आहे बेसिक जेका सिंधी में असां जे कॾहिं ऐं ॿारनि खे पढ़ाए सघूं जी उहो कीअं थी सघंदो इन्हनि जो कंहिंजो साईं? कीअं जेका बि आहिनि इहे कीअं यादि कर पाइनि कंहिंजो ऐं साईं? ऐं में जो उन ऐं उचार, ऐं में जो उहो त तव्हां ॿुधायो था उचार न। कीअं कढिजे उचार में ऐं या हिजे था, तव्हां पुछो उचार था पुछो या हिजे था अच्छा पुछो? हिजे 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 तव्हां उनखे हिजे चवंदो, हिजे में तव्हां उनखे चवंदो मीम, मीम जे हेठां ॿ खड़ी ज़ेर में, तव्हां उनखे ईअं पढ़ाए सघंदा। मीम हेठां ॿ खड़ी ज़ेर में। अच्छा जी अच्छा अच्छा सर वो अरबी में वरी ईअं हूंदो आहे मीम खड़ी ज़ेरे मिन हा, उहो मिन हूंदो आहे। उनमें उनजो उचार, उनजा रूल्स पंहिंजा न, ग्रामर ई पंहिंजो आहे। उन तव्हां अरबी ग्रामर जी ॻाल्हि पई कई, त मूं इहो अर्ज़ु पई कयो त जी जी उनजे ग्रामर जा रूल्स ई पंहिंजा आहिनि, बिल्कुलु उनजा रूल्स पंहिंजा आहिनि। त उनखे असां अप्लाई हिन ते न कंदासीं, पर हिनखे असां जेकॾहिं तव्हां हिजे कंदो सिंधीअ में, त तव्हां चवंदो त मीम, मीम हेठां ॿ खड़ी ज़ेर में, हमज़े हेठां ॿ खड़ी ज़ेर ऐं, इनखे हिजे ईअं कबो। दिस इज द स्टाइल ऑफ हिजेइंग इट, राइट? इज इट क्लियर? ठीक ठीक तव्हां सिंधी ठीक ठीक पढ़ाईंदा चङी आहियो महिरबानी नदीम साहब? जी सर सिंधी पढ़ाईंदो आहियां अच्छा, हाँ, तंहिंजे करे तव्हां पुछो। त इहो इन जो हिजे जो स्टाइल इहो ई थींदो, राइट? ठीक ठीक वरी महिरबानी सर वेलकम सर। एनी अदर क्वेश्चंस? जेकॾहिं न आहिनि त असां अॻिते था वधूं पिया पंहिंजी नेक्स्ट स्लाइड तरफ़। आई होप माई स्लाइड इज विजिबल टू यू। कैन आई लिसन फ्रॉम TR number 9? Is TR number 9 with us? If yes, सर just नदीम सो जी, you are TR number 9? जी सर Okay. Can I listen from TR number 13? TR number 24? Assalamu alaikum. Yes, sir. Walaikum TR salam. number 13. TR number 24? TR number 24? TR number 2? TR number Yes, 2? sir. Okay. Yes, sir. TR number 5? Yes, sir. Okay, thank you. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। और कल हमने सिंधी आयोटा जी पट्टी, इसको छुपाता हूँ, पूछता हूँ, सिंधी आयोटा की पट्टी को सिंधी में और क्या कहते हैं? एक दो हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज है जो कि हमारी पहली स्लाइड पर रोजाना होता है और मैं उसका जिक्र भी करता हूँ। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आसिफ इकबाल। जी आसिफ साहब। कक। कक कहा जाता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हु वाज देयर हु रेज्ड हर हैंड? आई कुड नॉट सी हर नेम। अगर आप बताना चाह रहे हैं या बताना चाह रही हैं तो आप बता दें। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। Yes, sir. Kak. कक कहा जाता है, राइट, थैंक यू, शाबाश। सिंधी आयोटा जी पट्टी यानी कक, इसको कक कहा जाता है। इज देयर एनीबॉडी विद अस? सर यू कैन ऐड ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर, इसको वर्णमाला भी बोलते हैं? आपको क्या बोलते हैं सर, पहले ये बताएं, आपको क्या बोलते हैं? सर मुझे जो कुछ कह दें मैं। नहीं, आपको जब पैदा हुए होंगे तो छठी की रात कुछ कहा होगा ना आपको, जो कहा होगा पूरी जिंदगी आपको उसी नाम से पुकारते हैं। तो पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आई मीन हमारे इलाके में तो सर पश्तो में इस तरह नेम है कि जो दरिया के ऊपर पैदा हो गया तो उसको दरिया खान, जो समंदर पे पैदा हो गया तो उसको समंदर खान, जो गुलाब के फूल के साथ पैदा हो गया तो गुलाब खान, जो गन्ने के साथ पैदा हो गया तो गंडेरी खान। पश्तूनों का बेल्ट है ना, तो सर इस तरीके से वो। 1.5 मिनट ले लिया। आप अगर 5 सेकंड में अपना नाम बताते तो बड़ा टाइम बच जाता। सर नाम बता दीजिए। हेलो सर आपने 15 नाम बता दिए, अपना नाम बता दें।
which is very much important. First of all, introduce yourself and then reply to the question. I repeated this request on daily basis. अपना नाम बता दें सर. 1 मिनट गुजर गया, 1.5 मिनट. आपका नाम एक समझिए. मुझे इमरान ही बोलते हैं सर. इमरान, पूरा नाम बताइए ना सर. ये अटेंडेंस लग रही है. I'm noting it down, sir. Please take it serious. Don't tell me Darya Khan and Samandar Khan. जी, Just मोहम्मद tell me इमरान your जकिया. name. I'm writing your attendance, sir. Your मोहम्मद appearance in the class. मोहम्मद इमरान जकिया साहब. आपने क्या मोहम्मद बताया? इमरान जी, आप जी जी बताएं सर. अपना. बताइए, जवाब बताइए जो आपने जवाब बताया था. मोहम्मद इमरान जकरिया सर. सर जवाब बताइए. जवाब बताइए. जो पहले आप फरमा रहे थे वो अब फरमाइए. मैंने आपके फरमाने से पहले मैंने कहा कि पहले इंट्रोड्यूस करवाइए, which is the SOP of the class. Just come. If you are coming for 50 times, you have to introduce yourself for 50 times. I need not the introduction of Samandar Khan or Darya Khan or anybody. Just for joke, that is correct. But 3 मिनट वेस्ट हो गए सिर्फ ये पूछने में कि आप कौन है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि try to save. We should respect the time for everybody who is dedicating. Now tell me कि क्या कहा जाता है सिंधी आयोटाजी पट्टी को, क्या कहा जाता है? जो 20 पट्टियां हम पढ़ रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? सर उसको कक भी बोलते हैं, और मैं सर दूसरा ये पता करना चाह रहा था कि उसको वर्णमाला भी आपने एक उसको दफा वर्णमाला बताया नहीं था बोलते पिछली हैं. क्लास में. उसको वर्णमाला नहीं बोलते हैं. वो पहली टेबल के नाम है. जो मैंने 5-6 नाम बताए थे वो पहली टेबल के नाम है. जो हुरूफ तहजी है या आयोटा है या अलिफ बे है या ABC है या जो भी है, वो पहली टेबल के नाम है. वो इन 20 के नाम नहीं है. अभी हम इन 20 का जिक्र कर रहे हैं. जो मजमुआ है पट्टी जिसको बोल रहे हैं हम, उसका जिक्र कर रहे हैं. उसको नहीं बोलते वर्णमाला. वर्णमाला बोलते हैं अल्फाबेट्स को. आयोटा बोलते हैं अल्फाबेट्स को. ठीक है सर. थैंक यू. ठीक सर, थैंक यू. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच. जी जीशान अहमद साहब, you have a question? Zishan साहब, you have a question? Just ask. You have a question? यस सर. सर अपने के जीशान अहमद साहब. सर मैं वो से जदवल कहते हैं. किसे जदवल कहते हैं? किसे जदवल कहते हैं जीशान साहब? ये जो आपने पूछा था ना. अच्छा, चलें. वकास साहब तो अच्छा था बताया. थैंक यू बेटा. जीशान साहब थैंक यू. वकास साहब तो अच्छा था. जदवल सर मैं भी उन्हें के जदवल तो ना. अच्छा ठीक है. ताई स्लाइड ॾिसो जेका साम्हूं खुलियल आहिनि. तव्हांखे सुवाल जो जवाब मिली वेंदो. तो ये पता चल जाएगा आपको कि इसको मैं ही पूछ रहा हूँ. सोतियात बचना है. Don't mix apples with oranges, sir. You are mixing apples with oranges. Sotiyat is something else. Sotiyat is phonetics. Phonetics means जेको ॿुधण में अचे थो. शयुनि खे मिक्स न कयो, पाण मिंगल अप न कयो, कंफ्यूजन थी वेंदो. Thank you very much. Please mute yourself. Try to understand. 3 चीजें आप समझें. पहली चीज कौन सी समझें? जो अल्फाबेट की पट्टी है, जो पहली पट्टी है. एक तो इसको पूरे को कक जिसको बोलते हैं ना, ये 20 पट्टियों का मजमुआ है. अगर कोई तव्हांखे चए तव्हां सिंधी अल्फाबेट जी पट्टी पढ़ी आहे, तव्हां सिंधी अल्फाबेट जी पट्टी पढ़ी आहे, मीन्स इहे 20 या 25 या 35 या 30 मुख़्तलिफ़ आवाज़नि वारियूं पट्टियूं, इनखे कक चइबो आहे. इनखे सिंधी आयोटा जी या सिंधी अल्फाबेट जी कक चइबो आहे. ठीकु आहे. मां इहो थो पुछां. हींअर सुवाल इहो हुयो त हिन पट्टीअ खे जेको असां 20 शयूं पढ़ूं था, ये 20 जो टेबल्स या जदवलों का मजमुआ है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पट्टी या कक. राइट, दिस इज द आंसर. दूसरा ये है कि जो हुरूफ तहजी है, यानी इनमें से जो पहली टेबल है, जो हर जुबान की पहली हुरूफ तहजी होती है, जो बेसिक्स है ना, हम जेर के उच्चार, जबर के उच्चार, पेश के उच्चार बाद में पढ़ रहे हैं, ये सुर बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक तो पहली टेबल है ना. हुरूफ तहजी जो ABCDEFGH है, जो आप उर्दू में पढ़ते हैं, अलिफ बे मुख्तलिफ पढ़ते हैं, बे नहीं है उसमें. जैसे सिंधी में असां जीअं पढ़ूं था अलिफ बे भे ते से, जेका बेसिक अल्फाबेट आहे उन जा केतिरा ई नाला आहिनि जेके मूं तव्हांखे लेक्चर नंबर 2 में ॿुधाया. जंहिंखे वर्णमाला बि चइबो आहे, जंहिंखे वर्ण पट्टी बि चइबो आहे, जंहिंखे पट्टी बि चइबो आहे, जंहिंखे अबजद बि चइबो आहे, जंहिंखे आयोटा बि चइबो आहे, जंहिंखे अल्फाबेट बि चइबो आहे, जंहिंखे अलिफ बे बि चइबो आहे. इहे सभु नाला आहिनि टेबल नंबर 1 जा. इहो थियो ॿियो सुवाल. टियों सवाल इहो आहे, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, कि ये जो हम कक पढ़ रहे हैं, ये जो हम पट्टी पढ़ रहे हैं, इनमें से हर एक पट्टी को क्या बोला जाता है? हर एक पट्टी को. जैसे अलिफ की पट्टी है, जैसे जबर की पट्टी है, जेर की पट्टी है, पेश की पट्टी है, मद की पट्टी है, तो उसको जदवल भी बोला जाता है, उसको टेबल भी बोला जाता है, उसको पट्टी भी बोला जाता है. ये मुख्तलिफ उसके नाम. राइट,
जिस तरह से इसी पेज में लिखा हुआ है द फोनेटिक एंड रिटन टेबल्स ऑफ सिंधी अल्फाबेट, तो सिंधी अल्फाबेट की जो टेबल्स है, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर पट्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर जदवल लिखा हुआ है, ये तीनों एक ही चीज है। मैं रिपीट करता हूं, यानी ये जो 20 पट्टियों का मजमुआ है इसको बोला जाता है पट्टी या कक। इसको आयोटा नहीं बोलेंगे, जाहिर कि वो आयोटा की पट्टी है, लेकिन इसको बोलेंगे मजमुई तौर पर, इस गुलदस्ते को बोलेंगे पट्टी या कक। ठीक है। अब जो उसमें पहली टेबल है हुरूफ तहजी वाली, उसके नाम बहुत सारे हैं। उसका नाम है आयोटा, ये जो लिखा हुआ है, उसका नाम है अलिफ बे, उसका नाम है हुरूफ तहजी, उसका नाम है सिंधी की एबीसी ये कह सकते हैं, उसका नाम है आयोटा। तो ये उसके नाम है, मुख्तलिफ नाम है। और जो इन 20 में से हर एक है उसको आप जदवल भी बोल सकते हैं, टेबल भी बोल सकते हैं, पट्टी भी बोल सकते हैं, ये तीनों नाम उसको बोल सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब कोई भी सवाल आए तो पहले सवाल की हैसियत को समझें। जैसे न्यूज चैनल्स की तरह ब्रेकिंग न्यूज जल्दी ना डालें कि उसके बाद फिर आपको तरदीद करनी पड़े। पहले समझें सवाल को। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बस में अचानक से चढ़ने से पहले चढ़ने के बाद ये मालूम करें कि ये बस कहाँ जाएगी और फिर आपकी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रही, तो पहले देख लें कि बस का नंबर क्या है। बस वही है, अगर आपको जेकॾहिं झुॾे वञिणो आहे झुॾे थी वञे पई, या झिलूरी वारी बस में चढ़ी पिया तव्हांखे, जेकॾहिं थाणे बुला खान वञिणो आहे तव्हां जेको आहे सो कंबर अली खान जी बस में चढ़ी आहे, तव्हां सही बस में चढ़ो। फिर अचानक से आप, वो सिंधी में चवंदा आहिनि भांभोल जी, पोइ तव्हां ॾिसो था त केॾांहुं वञो। सो पहले बात को तोलो, फिर सोच समझ कर बोलो। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। आपको पता है कि 44% हमारे कमीशन के इम्तिहान में लोग फेल क्यों होते हैं? नॉलेज होने के बावजूद भी दे कैन नॉट मैनेज द टाइम। वो हबड़ दबड़ में सही सवाल की जगह गलत को वो टिक कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, वो क्लियर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये होता है कि वहां मैनेज करना, वहां पर अपने जहन को मैनेज करना कि अगर 60 सवाल हैं तो 60 मिनट हैं आपके पास, उसको मैनेज करना। मैनेज कैसे किया जाता है? जिसको कंफर्म हो पहले आप वो टिक करते जाएं, जो नहीं है कंफर्म या आधे कंफर्म है उनको छोड़ दें। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई एम टॉकिंग टू यू, म्यूट योरसेल्फ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इट इज द एटिकेट ऑफ द क्लास कि अगर आप पहले हैंड रेज करेंगे तो मैं मुनासिब जगह पर आपको बताऊंगा कि कहां पर आपने सवाल करना है। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मैनेज नहीं कर पाते हम चीजें, तो उसमें ये होता है कि पहले जो कंफर्म है उनको टिक कर लें, जो थोड़े से भी 19-20 का जिसमें डाउट है उसको छोड़ दें। फिर जो आखिर में टाइम बचे फिर उसमें देखें कि करीब तरीन तुक्का किसका लग रहा है। अगर करीब तरीन तुक्का आप लगाने में कामयाब हैं तो ठीक है, वरना छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे ये सर्वे आया है कि 44% स्टूडेंट्स जो नॉलेज होने के बावजूद भी कमीशन क्लियर नहीं कर पाते, उसकी वजह यह है कि दे कैन नॉट मैनेज देयर इंटेलिजेंस। IQ और EQ का बैलेंस नहीं रख पाते। जिंदगी में कामयाब होना तो IQ और EQ दोनों का बैलेंस रखना है, तहम्मुल के साथ। बुर्दबारी वजी शइ आहे, इहो तव्हांजी जिंदगी में कम ईंदी। टू मैनेज थिंग्स, टू मैनेज नॉलेज मैनेज करना है बड़ी बात है। हमारे यहाँ ये इस खित्ते पूरे साउथ एशिया का मसला ये है कि अगर थोड़ी सी भी नॉलेज आ जाती है तो वो ओवरफ्लो बहुत जल्दी हो जाती है, उसको मैनेज करना बड़ा मसला होता है। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज। वो कहते हैं ये जानना जरूरी नहीं कि कहाँ बात करनी है, ये जानना जरूरी है कि कहाँ खामोश रहना है। मौलाना रूम का कॉल है, डाह पहिया ना है तो ॻाल्हाइजे किथे, डाह पहिया है तो चुप किथे रह जाए। चुप रहना ही तो आर्ट है, वही तो आना चाहिए। तो मैनेज योर वर्ड्स, वेयर टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। क्योंकि बोलना तो बच्चा 2 साल में 3 साल में सीख जाता है, लेकिन कौन सा लफ्ज, कौन सा शब्द, कौन सी बात कहाँ कहनी है, ये सीखने में उसको पूरी उम्र लग जाती है। तो रूमी का ये कॉल भले नोट कर लें और कोट भी करें और अमल भी करें कि अक्लमंदी ये नहीं है कि बात कहाँ करनी है, अक्लमंदी ये कि खामोश कहाँ रहना है। एंड दिस इज द आर्ट, राइट। तो वी आर मूविंग टू दिस चार्ट जिसका हमने कल जिक्र किया था सरसरी। तो ये है छठी टेबल, मद्द या अल्फ जो चार्ट, या मद्द अल्फ जी जदवल, या मद्द या अल्फ जी पट्टी चार्ट जदवल सेम थिंग। लेकिन जब हम ओवरऑल पट्टी का इन 20 पट्टियों का जिक्र करते हैं तो उसको सिर्फ पट्टी बोला जाता है या कक बोला जाता है। These all 20 are the elements of that कक, that पट्टी, जो यहाँ पर साइड में लिखा हो, सिंधी आयोटा जी पट्टी, या सिंधी अल्फाबेट जी पट्टी, या सिंधी अलिफ जी पट्टी, या सिंधी अबजद जी पट्टी, राइट, या सिंधी हुरूफ तहजी जी पट्टी। तो हमने पहली पढ़ी सिंधी अलिफ जो चार्ट, सिंपल अलिफ से लेकर ये तक सिंपल हमने चार्ट पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 और 3 में। उसके बाद आखिरी जदवल पढ़ा, आधे हर्फ वाली जदवल, फिर जबर जो चार्ट पढ़ा, जबर वाला चार्ट, फिर जेर की जदवल पढ़ी जिसमें जेर आती है तमाम हरूफ पर या फॉर्मेशन में कुछ हरूफ पर, फिर पेश जो चार्ट हमने पढ़ा,
और उसकी मश्क भी की, उसके नंबर्स भी आपको मिले। फिर मद या अल्फजी जदवल, यानी जो हम अब कर रहे हैं, जिसका रिवीजन हमने कल किया था, बल्कि आपने किया था, आज भी आप ही मुझे पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपकी पार्टिसिपेशन से आपके जो स्किल्स हैं वो शार्पन होंगे और हेजिटेशन कम होगी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी हेजिटेशन में रह जाती हैं। बड़ों ने आपसे बात मनवाई, आप खामोश रहे, वो आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन आप आर्ग्यू नहीं कर सके। यू कैन पुट फॉरवर्ड योर कंसर्न्स ऑलवेज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो कभी कभार वो खामोश रहने से वो ये है कि खामोश कहाँ रहना है, दिस इज एन आर्ट। लेकिन जो बोलना है वो किस अंदाज और मिकदार में बोलना है, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। सो स्पीक आउट जहां जहां पर आपको बोला जाए, जहां जहां पर आपको ये कहा जाए कि आप पार्टिसिपेट करें क्लास में। तो हम छठी ये जदवल पढ़ रहे हैं, और बाकी आपको पता है कि कौन कौन सी जदवलें अपकमिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, ताकि लैंग्वेज मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ सेगमेंट से आपके जहन में जहन नशीन होती जाए। तो असां कल मद आल्फ जी पट्टी या जदवल मद आल्फ जी जो चार्ट जेको आहे सो कल पढ़ियोसीं, ही तव्हां मूंखे पढ़ी ॿुधायो हुयो। ऐं हिकिड़ो दफ़ो मां रिवाइज़ कयो वञे, आ बा बा भा ता था टा, ठा सा पा जा ॼा झा ञा चा छा हा खा, दा धा दा धा। एक ही फैमिली के मुख्तलिफ हरूफ के जो डिफरेंसेस हैं वो समझें कि उसमें डिफ्रेंशिएट कौन सी चीज करिए, दा और धा में कौन सी चीज डिफ्रेंशिएट करिए, जा और या में कौन सी चीज डिफ्रेंशिएट करिए। धा डा डा ढा, जा रा ड़ा जा, सा शा सा ज्वा ता ज्वा आ गा, फा 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 फा। देखें एक ही फैमिली के दो हरूफ, लेकिन दोनों में फर्क। फा फा, फा में ब्लो हो रहा है, आपके दांतों के दरमियान से बाहर निकल रही है फा, लेकिन फा जो है उसमें आपके होंठ मिल रहे हैं। फा, फूल और फूल में जो फर्क है, फूल में होंठ नहीं मिलते, फूल में होंठ मिलते हैं, ठीक है। फल में होंठ मिलते हैं, फल ना फूल ना, उसमें होंठ मिलते हैं। का खा गा गा घा ङा ला मा ना णा वा हा आ या। राइट, अब हम इनकी डिटेल्ड में अब हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट, मुझे पता है कि आप क्योंकि इस बात का अंदाजा है कि जहां पर आप ये क्लास को सुन रहे हैं, कभी कभार आपके आसपास एम्बियंस ऐसा नहीं होता कि गौर से आप उन प्रोनाउंसिएशंस को सुन सकें। जाहिर है कि जब खामोशी में सुनेंगे तो जा और या के दरमियान फर्क महसूस होगा कि जा क्या है और या क्या है, न्या क्या है और ना क्या है, दा क्या है और धा क्या है, दोनों में फर्क क्या है, इन सब में एक फैमिली के मुख्तलिफ हरूफ में फ़र्क क्या है। लेकिन ट्राई टू लिसन इट, और रिकॉर्डिंग्स में भी आप अगर, क्योंकि मुख्तलिफ टेबल्स में हम इन्हीं हरूफ को पढ़ रहे हैं, चाहे ओ की सूरत में हो, ये अलिफ है, पेश आ जाएगा तो ओ होगा, जेर आ जाएगी तो ए होगा, और अदाखरी में भी अलिफ ही होगा, वो जेर आ जाएगी तो ए होगा, पेश आ जाएगा तो ओ होगा, जबर आएगी तो अ होगा, मद आएगा तो आ होगा, फिर गुन्ना लग जाएगा आ के साथ तो आ होगा। तो वही है, उसी को हम प्रैक्टिसाइज करें ताकि इन हरूफ के जो प्रोनाउंसिएशन हैं फोनेटिकली वो हमारे जहन नशीन हो जाए। तो यह अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, यू कैन लिसन टू इट केयरफुली एंड यू कैन रिपीट इट जहां जहां पर आप मौजूद हैं। अगर आपके आसपास वाले लोगों को बुरा ना लगे तो यू कैन रिपीट इट, यानी आप म्यूट ही रहें, लेकिन आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उनको नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ आप उसको उसके साथ सुर भी मिला सकते हैं। दिस अलिफ मद आ, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। गौर से सुनिए, मैं एक बार या तक मुकम्मल करके फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगा, रोल नंबर कॉल करूंगा, फिर जो भी हमारे साथ मौजूद होंगे वो अगले 4-5 हरूफ कल की तरह पढ़ेंगे। राइट, मैं स्लाइड पलटता जाऊंगा और आप पढ़ेंगे ताकि आपकी पार्टिसिपेशन रहे। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा में फर्क समझें। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, उसमें भी होंठ मिल रहे हैं, लेकिन आपस में कस के हम नहीं बोल रहे। बे अलिफ बा, इसमें कस के ये थोड़ी सी डिफरेंट आवाज निकाली जाएगी। एक ही फैमिली के दो हर्फ हैं, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। भे अलिफ भा, भे अलिफ भा, हमने रिश्तों में पढ़ा था भाव यानी भाई, फिर मैंने आपको सुभाव और कुभाव बताया था, तो ये भा कहाँ पर इस्तेमाल होगा। फिर रिश्तों में भा भी, जिसको सिंधी में भाजाई बोला जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे।
तो उसमें भी ये भा इस्तेमाल होगा, भा, बे अलिफ भा, ते अलिफ ता, थे अलिफ था, दिस इज थे अलिफ था, टे अलिफ टा, टे अलिफ टा, थे अलिफ ठा, थे अलिफ ठा, ठाकुर, थे अलिफ ठा, ठीक है। से अलिफ सा, सानी, से अलिफ सा, से अलिफ सा, समर वाली से, पे अलिफ पा, पाकिस्तान, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पाखर, पे अलिफ पा, पागल, बहुत सारे उर्दू में इस्तेमाल होता है। पे अलिफ प्या, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पारायण में भी इस्तेमाल होता है, यानी पहनाना, पे अलिफ पा। जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, जा बजाते खुद एक लफ्ज है, जा का मतलब है जे का, जो की मीनिंग इस्तेमाल होती है, वॉट एवर, विच एवर, जा, जा मुंह तो खे, मुबारक डिनी सा मुबारक, मुझे वापस कर, जा मीन्स जे का, जा मीन्स जो, तो जा जीम अलिफ जा, ये अलिफ जा, जाम, जामड़ो, जाम जामुट जामड़ा, ये अलिफ जा, जारो, ये अलिफ जा, बहुत सारे अल्फाज इससे बन सकते हैं, ठीक है। जमदे जाम, ये अलिफ जा, झे अलिफ झा, झे अलिफ झा, झार हकिलण, झार, झे अलिफ झा, झे अलिफ झा, ञे अलिफ न्या, ञे अलिफ न्या, if you could listen to it carefully, ञे अलिफ न्या, चे अलिफ चा, चाचा, चाचो, आपने पढ़ा चचा को बोला जाता है चाचो, उर्दू में भी चचा के साथ साथ चाचा भी बोला जाता है, चा, ठीक है, चा, मेरा मार्कर चा, तो आपको पता है सराइकी में चा यानी ला कर दो, ठीक है, चा, चा, चे अलिफ चा, छे अलिफ छा, छे अलिफ छा, छाण, छारो, छाछरो is the name of a city, as a town in Tharparkar district, छाछरो, छा, छा itself is what, छा means what, छा, तुम छाथो घुरण चाही, तुम क्या मांगना चाह रहे हो, क्या, छा मीन्स क्या, छा मीन्स क्या, व्हाट, छा, छे अलिफ छा, और बहुत सारे अल्फाज हैं छा से, जैसे मैंने बताया शहर का नाम है छाछरो, जैसे मैंने कहा कि छाणिण, छानना, छानने को बोले जाते हैं, छाणिण, बहुत सारे अल्फाज हैं, सिर्फ मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि इस छह अलिफ छा से कौन से अल्फाज हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर सैकड़ों हैं और हजारों होंगे में भी, जो मेरे जहन में आ रहे हैं, मेरे सामने लिखे नहीं हुए, वो मैं एक दो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, हामी, हामी यानी हिमायत करने वाला, हामी, नदीम सऊद साहब को पता होगा कि हामी कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर तामोमद हामी कौन है। हा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा, खालिद, खालिस, खामी, बहुत सारे अल्फाज हैं, खामी, ये तमाम अल्फाज उर्दू में भी है, खालिद अरबी का लफ्ज है, खुल्द में रहने वाला, जन्नत में रहने वाला, खालिद, खालिस, तो ये खाम यानी खाली, खाम यानी खाली, खाली का मतलब है खाली, दा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, ठीक है, निदा, रिदा, हुदा, बहुत सारे, हुदा तो खैर ये के अलिफ ऊपर अलिफ से लिखा जाता है, लेकिन दा की आवाज उसमें इस्तेमाल होती है, धाल अलिफ धा, धाल अलिफ धा, धार, धार मीन्स जुदा, धार, धाल अलिफ धा या धे अलिफ धा, डाल अलिफ या डे अलिफ डा, डार, दरार को बोलते हैं डार, डाल अलिफ डा, डाक पढ़ा था हमने, याद है, डाक हमने पढ़ा था, तो डाक में डार होते हैं, यानी उसमें दरारें होती हैं डाक वाली जमीन में, डा, डाडो आपने पढ़ा था, दादा को बोला जाता है डाडो, डाहो, डाहो बोला जाता है वाइस को, डाहो, अभी मैंने कहा डाहप या ना है, जो मौलाना रूमी का कौल था कि खामोश बोलना कहाँ है बल्कि खामोश कहाँ रहना है, यह डाहप्पा है, डाहप्पा मीन्स विजडम, डाहो मीन्स वाइस, डाहो, तो डाल अलिफ से बहुत सारे अल्फाज हैं, बजात खुद डाडो, डाडी, दादा, दादी, वो डाल से है, डाल अलिफ डा, डाल अलिफ डा, डाक, ड्राक, जो अंगूर होते हैं, जो मरून कलर के अंगूर होते हैं, ड्राक, ठीक है, ड्राक है अंगूर, ढा, ढाल अलिफ ढा, ढा, ढाल अलिफ ढा, बुढ़ा यानी बुढ़े, बुढ़ा, बुढ़ापुर हमारे यहाँ एक गांव का नाम भी है, रेलवे स्टेशन का नाम भी है, ढा, ढांचो, ढांचा, ढेल, ढाल अलिफ ढा या ढेल ढा, ठीक है, ढा,
तो ढापण मीन्स सैर होना, मीन्स पेट भर के खाना, ढापण सैर होके खाना। जाकिर, जाल अलिफ जा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, राकेट, राकेश, राहरू, राह, राहबर, राहजन। कितने अल्फाज हैं? ठीक है, ये तो बाद में हमने हरूफ लगाए, और शुरू में अगर लगाए तो तबसरा, मुबर्रा, बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं। रा, रा, ठीक है, रा, दिस इज रा, रे अलिफ रा, रे अलिफ डा, डाक आपने पढ़ा है, कितनों को याद है डाक? डाक के डाक क्या है? डाक डे से एक वाहिद लफ्ज है जो कि सिंधी में शुरू होता है। डाक, डाक, डे अलिफ डा, जे अलिफ जा, जे अलिफ जा, मजा, मजा, जे अलिफ जा, ठीक है, जे अलिफ जा, जायरीन, जायर, जायर मीन्स जियारत करने वाला, जायरीन मीन्स जियारत करने वाले, बहुत सारे लोग, तो उसमें भी जे इस्तेमाल होता है, जे अलिफ जा। सीन अलिफ सा, हजारों अल्फाज शुरू होते हैं, खत्म होते हैं। साई, साईम, सदाई, साई। इसी तरह से सारो, सारो, बुस्सा, शुरू में अगर लगाएंगे बुस्सा मीन्स सूना, सूने को कहते हैं बुस्सा, सूने, बहुत सारे, बुस्सा। इसी तरह से बहुत सारे इसमें। सारो मैंने आपको बताया, सारो मीन्स पूरा। तो सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शाह, शायर, शायर, शारिह, शरह करने वाला शारिह, शायर, शेर कहने वाला शायर, ठीक है। तो यह है शीन अलिफ शाह, शाह, शाहराह, शाहराह फैसल, तो ये सब में शीन आता है। स्वा, स्वाद अलिफ स्वा, स्वाद अलिफ सा, साबिर, साबिर, स्वाद अलिफ सा, ज्वाद अलिफ ज्वा, ज्वाद अलिफ जा, तु अलिफ ता, तु अलिफ ता, तु अलिफ ता, तायर, पक्षी, पक्षी को, पंछी को। ऐ तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता इकबाल। तो तायर, तायर लाहू, ऐ तायर लाहूती, ताहिर, तहारत वाला, पाक और साफ, ताहिर। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज, त्वाहा मुख्तलिफ अल्फाज हैं कि तुए के ऊपर भी जबर लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया। मद लगाएं तो भी वही आवाज आएगी, जबर लगाएं, खड़ी जबर लगाएं तो भी वही आवाज आएगी, और ये अलिफ लगाएं तो भी ये आवाज आएगी। कल मैंने एक स्लाइड में आपको समझाया था। तो ये त्वा, तु अलिफ त्वा, जु अलिफ ज़्वा, ज़ालिम, जु अलिफ ज़्वा, जु अलिफ ज़्वा, ऐन अलिफ आ, आलिम, आमिल। तो मुद्दा, शुरू में मीम और दाल लगाए, मुद्दा, ठीक है। आलिम मैंने आपको बताया, आमिल, बहुत सारे अल्फाज हैं जो रैंडमली मेरे जहन में आ रहे हैं, वो बता रहा हूँ कि मुमकिन तौर पर कितने अल्फाज हो सकते हैं इस ऐन अलिफ आ से बनने वाले। गैन अलिफ गा, गायब, गायब, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज जो मेरे जहन, गार, केव, केव, गार, गामिदी, गामिद, गासिब, गसब करने वाला, बहुत सारे अल्फाज। गैन अलिफ गा, फे अलिफ फा, फाइज, फाइज, फाइजा, हमारे यहाँ क्लास में भी है फाइजा, उसी का मुअन्नस जो कि फाइज है किसी ओहदे पर। तो तकरीम वाला, कामयाब, मुख्तलिफ उसकी मीनिंग हो सकती है। तकरीम, काबिल तकरीम भी और कामयाब भी, तो ये फाइज के मुख्तलिफ मायने हैं। तो फाइज, और अगर उससे पीछे पीछे लगाएं, अगर उससे आगे मुख्तलिफ हरूफ लगाएं तो बहुत सारे, गफा, खफा, और मुख्तलिफ अल्फाज एंड सो ऑन। फे अलिफ फा, फे अलिफ फा, फार, हाक, हाकू, फार कहते हैं स्लाइस को, कीनू अगर काटेंगे तो उसकी एक स्लाइस का है, कहलाएगी फार। फारू मीन्स प्लूरल में, फारू, हा, हा। और कभी कभार हम इंटेंजिबल चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मोजो, हाँ, फारू, फारू आए मीन्स मेरा अंदर जो है वो स्लाइस स्लाइस हो चुका है, मीन्स मैं बहुत ही गमजदा हूँ, बहुत ही, ये ग्रीफ की पोजीशन को फारू में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हाकुम, फिर उसको हाकुम भी बोला जाता है। कभी कभार सूरज की किरणों को भी उस फारू से, स्लाइसेस से तशबीह दी जाती है। फिर काइद, कारी, कारी, ठीक है। बका, शुरू में अगर लगाएंगे बका, बहुत सारे अल्फाज हैं। काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, कातिब, कातिब, कासिब, कसब करने वाला, कासिब यानी मेहनत करने वाला। मजदूर, अल कासिब हबीबुल्लाह, कुरान का इरशाद, अल कासिब हबीबुल्लाह।
यानी फौरे तो खुदा जो दोस्त है, कातिब यानी किताबत करने वाला, काफ अलिफ का, खे अलिफ खा, खाइन खाना, खे अलिफ खा, खे अलिफ खा, बहुत सारे अल्फाज से खार जगह चाड़ बिया कपड़न के धोने दिला है, तो इस तरह से खाइन या बरल एंड सो ऑन। मेरे सामने वो अल्फाज नहीं है, वो हम टेबल में करेंगे जब उसकी मशक करेंगे कल इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद गा, गा, गाफ अलिफ गा, गा, गाफ अलिफ गा, ठीक है, गा, ये अलिफ गा, गायन, गाय, गाय वरी कुछ गाय बावरा, ये अलिफ गा, ये अलिफ गा, गा, घे अलिफ घा, घायन, घायन जख्मी करना, घाओ जख्म, घारो शहर का नाम है, कराची से छटा जाते हैं दरमियान में घारो आता है, और घारो का मतलब है शगाफ, वैसे मतलब है शगाफ, तो वहां पर समंदर ने शगाफ डाला तो उस शहर का नाम पड़ गया घारो, घायन, घाव, तो घा जिसको उसको तो खैर सिंधी में गाह बोलते हैं, जो घास है उर्दू में, 12 मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो घास बनते हैं। गा, लंगा, शुरू में अगर लाम लगाएंगे लंगा, चंगा जो जिद्दा है, अच्छे का जिद है, बुरे के लिए इस्तेमाल होता है लंगो, और प्लूरल में लंगा, और लंगा वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा की बात है, हिक लंगा, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है लंगा, यानी एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा हुआ, कोई भी चीज एक बार हुई हो तो कहा जाएगा गा, लंगा, गा। लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, ठीक है, बहुत सारे अल्फाज में शुरू में भी लगता है, बहुत सारे अल्फाज में आखिर में भी लगता है। ला का मतलब है नहीं, बजाते खुद इस लफ्ज की माना है लापरवाही, ला मुतनाही, लागर, लागर्ज, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिसमें लागर लगता है ना, लागर्ज यानी उसकी कोई गर्ज नहीं है। ला मुतनाही कभी भी ना खत्म होने वाला, सिंधी में भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे अरबी के अल्फाज। लापरवाह, लापरवाही जो परवाह ना करे, परवाह करने वाले की जिद, लापरवाह, तो ला बहुत सारे उसमें इस्तेमाल होता है, और शुरू में भी बहुत सारे हरूफ के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पर प्लूरल के। भला, भलो मीन्स अच्छा, भला मीन्स बहुत सारे, जैसे भले उर्दू में कहते हैं ये आदमी भला है, उसको सिंधी में बोलते हैं भलो, और प्लूरल में उसको बोलते हैं भला, यानी सब मानो भला है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल होता है। मीम अलिफ माँ, माओ, अगेन रिश्तों में माँ को माओ बोला जाता है, तो मीम अलिफ माँ, माणेन यानी हासिल करना, माण यानी हासिल करो, तो इसी तरह माक आपने पढ़ा है ड्यू ड्रॉप्स को, माक इसी से मीम अलिफ से ही बना है। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, वही बहुत सारे अल्फाज के शुरू में अगर ना शुक्रा, ना शुक्रो, अगर ना लगता है तो उसका मतलब है शुक्र ना करने वाला, जिस लफ्ज के आगे लगेगा उसकी जिद के तौर पर, एंटोनियम के तौर पर सामने आएगा, ठीक है। तो नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, ऋण अलिफ णा, महना, सोहना, महना मीन्स ताने, महनो मीन्स तानो, महना उसका प्लूरल है। इसी तरह से सोहनो मीन्स खूबसूरत, सोहना मीन्स प्लूरल में खूबसूरत, तो इसी तरह से णा, अणासी, 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 जिससे किसी भी चीज की तवक्को ना रखी जाए, जो कि इंतहाई खुद गर्ज हो, उसको अणासी, सजने साणे के अणासी अवसरे शाब्द नदी बिटाई ने कहा, हैफ तनीक होए वतन जन विसारियो, सजन और साणे यानी अपना महबूब और जाए पैदाइश, ये दोनों चीजें किसी खुदगर्ज इंसान से ही भूली जा सकती हैं, वो ही भुला सकता है दो चीजों को। सजन साणे के अणासी अवसरे, अणासी मीन्स खुदगर्ज, या कुछ लुगात के मुताबिक और भी इसकी सख्त मीनिंग है, यानी किसी अच्छे इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हैफ तनीके होए, उन लोगों पर हैफ हो, वतन जन विसारियो, जो अपने वतन को भूल जाएं। णा, नून अलिफ णा, वाव अलिफ वाह, वाव अलिफ वाह, वाह अपने वाटर बॉडीज में पढ़ा, वाह नहर को बोला जाता है वाह, इसी तरह से वाह वाह किया जाता है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो और बहुत सारी चीज़ों की के प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तवा जो आप जिस पर खाना पकाते हैं उसको सिंधी में तव बोलते हैं, लेकिन अगर जमा में इस्तेमाल करेंगे तो सिंधी में उसको जमा में तवा बोलते हैं, उर्दू में सिंगुलर में उसको तवा बोलते हैं। नवा, नवा का मतलब है आवाज़, जो कि आपको पता है कि फारसी का लफ्ज़ है, सिंधी में भी इस्तेमाल होता है। दवा, तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा,
दवा वही मीनिंग है जो कि उर्दू में है, दवा का मतलब है मेडिसिन। तो वाह बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। वैसे उर्दू में खाली वाह भी लफ्ज है, वाह यानी खोलना, नीम वाह यानी आधी खुली हुई। कई दिनों से मेरे नीम वाह दरीचों में ठहर गया है तेरे इंतजार का मौसम, परवीन शाकिर। वाह, वाह का मतलब खुला हुआ। दीदा दिल वाह, रोजने दीदा दिल वाह, या रोजन कहते हैं खिड़की को, दीदा दिल यानी दीद और दिल, आंखों और दिल की खिड़कियां वाह यानी खोल रखी हैं आपके लिए। ठीक है, वाह होना यानी खोलना। नीम वाह यानी अध खुली, आधी खुली हुई, अध खुले न के वाह चाहे पर वाह सिंधीअ में ना आहे, वाह उर्दू में आहे, पर वाह सां सिंधीअ में खोड़ सारा लफ़्ज़ आहिनि। उनजे करे असां इहो पढ़ूं था उचार। उन को हा, हे अलिफ हा बजाते खुद हा यस को कहा जाता है, हाँ को कहा जाता है। शुरू में बे लगाए, बहा, बहा मीन्स प्राइस, बहा इज प्राइस। जॾहिं कख बि लख में विकाणो ॾिठो मूं त यूसुफ जी मूंखे बहा यादि आई, त निसार बज़मी तो चवे पियो त बहा। ठीक है, हार, हार मीन्स वही हार, मतलब फूलों का हार या नोटों का हार, वो हार है। ठीक है, हार, बहार, उसी हार में बे लगा दें तो बहार। हार, हार मीन्स जीत का अपोजिट जो है वो भी हार कहलाता है सिंधी में। तो हा से बहुत सारे अल्फाज, हाउकार, हा हा करण सिंधी में मुहावरा है। ॿारनि खे हा हा त कर मीन्स उनको जरा उनको डांट पिलाओ क्योंकि बहुत शरारत करें। ॿारनि खे हा हा त कर। तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो हा से शुरू होते हैं। हमजा, अलिफ आ, हमजा जबर आ, बुआ, मैंने आपको बताया था रिश्तों में, या अभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन बुआ सिंधी में उसको पुफी बोलते हैं लेकिन बुआ भी बोलते हैं। आ, मुआ, मर गए, जो मर गए, मुआ। सुआ, जो सुनाई दिए, तिहा पोए स्वा सोहनी सद में हार जा, उसके बाद सुनाई दिए, जब सोनी ने पुकार पुकार कर जब जान दे दी उसके बाद उसकी आवाजें, उसकी पुकारें सुनाई दी। सुआ यानी बुधा। ससुई, सुई जो है, स्वा और सुई ये वही है। स सुई यानी जिसके बारे में अच्छा सुना गया, मैंने आपके उसकी मीनिंग बताई थी। हमजा अलिफ आ, ये अलिफ या, ये अलिफ या मेरा नाम इसी से शुरू होता है, ये अलिफ या। ठीक है, तो इसी तरह से यावर, उसी तरह से यास, यास यानी नाउमीदी, बहुत सारे इस या से बनने वाले जो अल्फाज हैं सिंधी में। या गडिया मीन्स मिले, शुरू में अगर गाफ और डाल आप इसमें ऐड कर लें। मिलिया मीन्स मिले, गडिया मीन्स मिले, खिलिया मीन्स हंसे, और खुलिया मीन्स खुल गए। दरवाजा खुलिया, मुते अकुल जा डाह जा दरवाजा खुलिया, तो उसमें भी शुरू में खे और लाम आएगा और आखिर में ये आएगा। तो ये अलिफ बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। आर यू रेडी टू प्रोनाउंस दीज ऑल अल्फाबेट्स? आपके सामने मेरा चार्ट खुला होगा एंड आई विल इनवाइट यू। पहले आप बताएंगे आप में से वॉलंटियर कौन करेगा। कोई भी स्लाइड आपके सामने हो, मैं सीरीज में नहीं पढ़ा रहा, मैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा सकता हूँ या कहीं से भी रैंडमली पढ़ा सकता हूँ। इज देयर एनीबडी जो कि आयशा तारिक साहबा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा साहबा जी, आयशा साहबा आपके सामने स्लाइड विजिबल है? यस सर। मैं स्लाइड पलटता जाऊंगा और फिर जो भी लफ्ज आए तो आप उसमें पढ़ती जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आपके सामने जो है उसको पढ़िए। पहला क्या है? या अलिफ या। इसको बोलेंगे ये अलिफ या। ठीक है, बोले ये अलिफ या। जी। ये अलिफ या। जी, नेक्स्ट। हमजा अलिफ आ। हे अलिफ हा। वाव अलिफ वा। टे अलिफ टा। ये नहीं है, यही तो बात है। णून अलिफ ड़ा। ये वो उस वक्त जो है ना, आप उर्दू वाली उसको बंद कर दें, उस लेयर को बंद कर लें, उस वक्त आप सिंधी वाली लेयर को ऑन करें। जैसे फोटोशॉप में होता है, लेयर आप ऑफ कर दें कि भाई इस वक्त उर्दू ऑफ है, इस वक्त सिंधी ऑन है। क्या आप दोबारा बोलें? णून अलिफ ड़ा। शाबाश। नून अलिफ ना। मीम अलिफ मा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शाबाश। शाजी इसराज साहबा जी सर। जी, शाजी साहबा कैन यू सी माय मीम अलिफ स्लाइड? मा। यस जी सर। जी मीम अलिफ मा। जी। लाम अलिफ ला।
Nye alif nya. Nye alif na. Nye alif na. Say it. Nye alif na. इसमें नून नहीं है. इट साउंड्स लाइक नून बट ये गाफ की फैमिली से है. गाफ की बिगड़ी हुई शक्ल है. nye 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 Nye. 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 जी बोले. Nye alif nya. ना. Nya. जी. Ghe alif gha. Ga sorry. Ghe alif ga. ये अलिफ गा. Ghe alif ga. अगेन कहें. गाफ की बिगड़ी हुई शक्ल. ये अलिफ गा. Ghe alif ga. ये अलिफ गा. गा पूरा बोले. Ghe alif ga. जी. Gaf alif ga. शाबाश. थैंक यू शादी साहब. थैंक यू. अफरोज साहिबा ए सेशन जी डिस्कनेक्ट थींदो असां कनेक्ट कंदासूं. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू जॉइन अस बैक. त जीअं ई असां वापसि ईंदासूं त अफरोज साहिबा असांखे जॉइन कंदी ऐं उहा असांखे पढ़ी ॿुधाईंदी गाफ़ खां अॻिते. त असां हेसिताईं पढ़ियासीं त गे अलिफ गा ऐं गाफ़ अलिफ गा. इसको समझने की जरूरत है कि ये गे जो है वो गाफ की बिगड़ी हुई शक्ल है, यानी उसी का एक और फॉर्म है, इसी का एक और टेक्सचर है, इसी का एक और फ्लेवर है. ग ग. रबिया साहिबा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. जी. गाफ अलिफ गा. काफ अलिफ का. हाँ. कहाँ से आ गया? उर्दू वाला लेयर ऑफ करें, सिंधी वाले मोड में आ जाएं. कम इनटू सिंधी मोड. दिस इज नॉट खा. का. खा अलिफ खा. हाँ खा नहीं, खे अलिफ खा. खे अलिफ खा. जी. व्हाट इज दिस? काफ अलिफ का. व्हाट इज दिस? कॉफ अलिफ कौ. व्हाट इज दिस? फा अलिफ फा. फे अलिफ फा. इसको बोले फे अलिफ फा. फे अलिफ फा. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. आयशा खान साहिबा. जी सर. जी आयशा खान पढ़ें इसको. ये जी इसको पढ़ें. फे अलिफ फा. उसके बाद काफ फे अलिफ फा. गैन अलिफ गा. आइन अलिफ आ. जोए अलिफ जा. तोए अलिफ ता. थैंक यू. शाबाश. अफरोज साहिबा. अफरोज साहिबा. अफरोज साहिबा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अफरोज साहिबा पंहिंजो पाण खे अनम्यूट कयो. जेकॾहिं को प्रॉब्लम आहे त जेसिताईं तव्हां जो तेसिताईं आइलीन साहिबा, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड सम लेटर्स फॉर मी. यस सर. आइलीन साहिबा, यस सर. read it loud. जोए अलिफ जा. तोए अलिफ ता. ज़ाद अलिफ जा. Good. साद अलिफ सा. शीन अलिफ शा. सीन अलिफ सा. जाल अलिफ जा. जाल नहीं है, जे है. जे जे अलिफ जा. रे अलिफ रा. शाबाश. थैंक यू सर. And this last one. रे अलिफ रा. Thank you, Eileen. Thank you. Afroz Saiba, are you able to unmute yourself? यस सर. जी अफरोज साहिबा, इतना पढ़ो. रे अलिफ रा. गुड. जाल अलिफ जा. ढाल अलिफ ढा. डाल अलिफ डा.
दाल अलफ दा दाल अलफ दा दाल अलफ दा। थैंक यू फिरोज साहबा, बड़ी मेहरबानी। रबिया, आपका हाथ अभी तक रेज है। मेरे ख्याल में आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, मेरे सामने जो है नाम उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। एनीबडी एल्स? मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, कैन यू कम एंड कंट्रीब्यूट फॉर अ फ्यू लेटर्स? जी सर जी। जी इमरान साहब पढ़िए। दाल अलिफ दा, खे अलिफ खा, हे अलिफ हा, छीम अलिफ छा, छीम नहीं है, छे है, खाली छे छे। छे छे अलिफ छा, चीम अलिफ चा, चीम नहीं है, चे चे है, चे चे चे। ये सर चीम नहीं है, वो चे दूसरा चे 4 नुक्तों वाला वो छे था चे। ना। वो छे है, ये चे है। आप उसका इसकी आवाज ठीक निकाल रहे हैं, लेकिन चे जो इस हर्फ को चे बोला जाता है, चीम नहीं बोला जाता। जीम थोड़ी है, चे चे बोला जाता है। चे अलिफ चा। अच्छा, जिस तरह सर जिस तरह चाय चाय बोलते हैं, जिस तरह चाय, नहीं, वही वही आप चीम चा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसकी आवाज ठीक निकाल रहे हैं, हर्फ की आवाज ठीक है, लेकिन इस हर्फ को बोलते क्या है उसको करेक्ट कीजिए। उसको चीम नहीं बोलते, उसको चे बोलते हैं। चे चे। चीम ना बोले, चे बोले। चे आवाज अलिफ ठीक है, हाँ आवाज ठीक है। चे अलिफ चा, सही। मुश्किल आ गया? है अलिफ हा, है नहीं है कहाँ है भाई? है तो नहीं है में तो अभी देर है। ये क्या है? ये ये अलिफ जा, ये नहीं है, ञे है, वो ञे दूसरे वाला जे अलिफ। ञे ञे। क्या है? ने यही तो सब। ने ञे ने नहीं है, ने अलिफ नून ना, नून नहीं है। ञे ञे ञे। बोले ने ट्राई। हाँ, ञे अलिफ ञा। ने ञे अलिफ ञा। ने अलिफ ना, हाँ, अब 2-3 को मिलाकर ने आप बोल अलिफ रहे हैं। ना, ना नहीं है, नून नहीं है ना, नून का आप ये ने अलिफ ना, नून नहीं है। थैंक यू वेरी मच इमरान जकरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ने कैन आई हेयर फ्रॉम टीआर नंबर 1? कैन आई हेयर फ्रॉम टीआर नंबर 1? जी, टीआर नंबर 1 इज देयर। जी जी सर जी। जी। क्या है? आप पढ़ना शुरू करें। ञे अलिफ ञा। ये अलिफ ञा। दोबारा से 2-3 बार पढ़ें, ताकि हमारे दूसरे साथी भी सुन सकें, इमरान जकरिया साहब भी सुन सकें। थोड़ा सा स्पीक ञे अलाउड। अलिफ ञा। अगेन ञे अलिफ ञा। अगेन। ञे अलिफ ञा। Everybody is requested. She's pronouncing correct. I'm not just repeating it because she's pronouncing wrong. She's pronouncing absolutely correct. You have just to follow how she pronounces. Yes. ञे Again. अलिफ ञा। Nye alif nya. ञे अलिफ ञा। शाबाश शाबाश। एक बार और बोलें ताकि सब सुन सकें। ञे अलिफ ञा। Nya. This is nye alif nya. Next. झे अलिफ झा। ये अलिफ या। Yeah. जीम अलिफ जा। पे अलिफ पा। से अलिफ सा। ठे अलिफ ठा। Thank you. Shabash. Can I hear from Mr. Mohammed Jalil Saab? Mr. Mohammed Jalil Saab, are you there? Can I hear from Mr. Mohammed Hamza Saab? Can I hear from Mr. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा साहब कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चालान तो नहीं हुआ? नहीं सर, अच्छा बच चले, बच गए। आज भी बच गए, कल भी बच गए यानी। चले चले जी, पढ़िए इसको। ये क्या है? सर ठे अलिफ ठा। अच्छा, व्हाट इज दिस?
ते अलिफ ता गुड। था ते थे अलिफ था ते अलिफ ता फे अलिफ फा दिस इज भे, 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 भे सॉरी भाई, सर भाई वाला भे। भोलड़ो वाला हाँ, बोलड़ वाला भे। भे अलिफ भा, भे अलिफ भा। भा थैंक यू सर, थैंक यू हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर वेलकम सर। कैन आई हियर फ्रॉम फजीला? फजीला आर यू देयर? यस सर, किथे आयो? यस सर। जी, पढ़ो। भे अलिफ भा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, अलिफ मद आ, थे अलिफ था, ये अलिफ या, खे अलिफ खा, दाल अलिफ, ढाल अलिफ ढा, ढाल सां छा ईंदो आहे सिंधी अल्फाबेट में? जॾहिं चार्ट असां पढ़ंदा आहियूं त ढाल सां छा ईंदो आहे? सर ढगो, ढगो को उर्दू में क्या बोलते हैं? ढगो बेल, बैल, ठीक है। और अगर सिंधी में बोला जाए तो तू तो सफ़ा ढगे जो ढगो आई मीन्स, इट मीन्स इट मीन्स सर उनमें अकुल को नहीं। अकुल कौन है? उर्दू में बताएं ताकि सारे समझ सकें। अगर हम किसी को, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ दोबारा, फजीला आप ये बताएं कि अगर किसी को कहें कि तू तो सफ़ा ढगो आई, तू तो बिना ढगो आई, तू तो ढगे जो ढगो आई, तो उसका उर्दू में मतलब क्या होगा? कि तुम पागल हो, पागल अकल नहीं, नहीं है। बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो या बेअकल हो। बेवकूफ, हाँ, बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ हो। बेअकल। बहुत, यानी कॉमन सेंस नहीं है तुम में, तुम तेज नहीं हो, तुम एक्टिव नहीं हो। बहुत शुक्रिया फजीला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। सभिनी जी महिरबानी। हाणे थैंक यू सर। वेलकम मैम। अच्छा, ये बताएं कि ये तस्वीर किस किस ने देखी थी कल? और मैंने इस पर क्या कहा था? आयशा तारिक साहबा क्या रिक्वेस्ट की थी हमने? सबने याद रहे माशाल्लाह। आयशा तारिक साहब आप बताइए क्या? जी सर, आयशा, इस तस्वीर को देखकर कुछ जुमले लिखने थे, चंद जुमले लिखने थे और फिर उसको ट्रांसलेट करना था उर्दू सिंधी में। डिड यू ट्राई फॉर इट? यस। कुछ बताएं। ओके, तो मैं सिंधी में पढ़ती हूँ, जी जहाँ मिस्टेक हो तो जी। हिक वार आऊं बाजार महण था, क्या कहना चाह रही हैं? आऊं ॾिसण, हिक वार आऊं बाजार महण था। कहना क्या चाह रही हैं ताकि उसको पता चले कि एक दिन, वार हमने पढ़ा था दिन के लिए, एक दिन मैं बाजार जा रहा था। तो इसका होगा हिकड़ी मां बाजार वञी रहियो हुयुसि। यू कैन करेक्ट इट राइट। अच्छा, दिन के लिए वर्ड वार भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वार इज अ क्लासिकल सिंधी वर्ड, मतलब वो डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता। तो आप डी बोलेंगे ना, डी मैंने पहला पढ़ा था डी, ठीक है। हिक डी मां बाजार वञी रहियो हुयुसि। जी, ओके ओके। आऊं ॾिसण ता कुछ ॿारहन रांदि कंदी पए हो। ओके। हिक नंढी न्याणी पंहिंजे पुतों सां रांदि कंदी पई। छोकिरी रस्सी खां सोघो छक हो। आसमान में ककर ना हो, उस पियो हो। हिन जो भाव कोशिश कंदो वियो त इहे फ्लिप न वेंदी।
क्या कहना चाह रही हैं इसमें? उसका भाई कोशिश कर रहा था कि वो स्लिप कि ना वो हो। स्लिप ना हो जाए, बिकॉज ओके, ठीक है। वो स्केट्स पहने हुए हैं ना ओके, उसके। ओके, ठीक है, ठीक है। केतराई बारन हिन के डिसी वेंदी हुई। बार बारन पंहिंजे स्कूल या मदरसे मां मोकले रहंदे हुए। ये फ्रॉक वाले बच्चे आपको मदरसे वाले लग रहे हैं? स्कूल स्कूल। जी। बार सड़क पार करण लाइ इंतजार कयो हो। ठीक है, आगे। इतना लिखा था, या फिर इसको अगर ये जो दो बच्चे हैं इनको अलग अलग भी लिखे हैं तो हिक छोकरो ऐं हिक छोकरी रान कंदी पई हो। तो जो अल्फाज हमने सीखे हैं वो छोकरो छोकरी वो मैंने उस वो मैंने वो मैंने समझा कि आपने वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे में जो कुछ सीखने की कोशिश की, वो कोशिश की कि आप जी। उनको इस्तेमाल कर सकें। चले, इस पर जो है वो कल की क्लास का आगाज इससे करेंगे और उसमें जो करेक्शंस हैं कल आपको बताऊंगा ताकि आप नोट कर सकें। राइट, फिर वक्त में देख लेता हूँ कि किस किस ने इस पर ओके, थैंक काम किया। वेलकम वक़ास साहब। वक़ास साहब जी सर। जी वक़ास साहब, तव्हां कुछ लिखियो आहे न ते? जी सर। ॿुधायो। कुछ नंढड़ा ॿार आहिनि। कल मां रस्ते तां वञा पियो त मां ॾिठो उते नंढड़ा ॿार बीठा हुआ। कुझु ॿार ट्यूशन पे विया। हिकु नंढड़ी वटि हिकिड़ो गुलर हुयो जेको उन हथ खां छॾायो पियो वञे। उन हथ मां छॾायो पियो वञे त हिकिड़ो नंढड़ो वॾो ॿार, माना नंढड़ी खां थोरो वॾे ॿार हुयो, माना थोरो वॾी उमिरि जो हुयो छोकिरो, उहो बीठो उनजी हेल्प करण जी कोशिशि पियो कई त ईअं न थिए त गाॾी हेठि अची वञे, रोड आहे, ईअं न थिए रोड जे विच में इहो गुलर अची वञे नंढड़ी खां छॾाए वञे। इहो मां ॾिसो आहे सर। ठीक है, थैंक यू वक़ास साहब, मेहरबानी। मोहम्मद हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हमजा साहब। जी सर। सर मेरी मदर टंग तो उर्दू सिंधी नहीं है, मैंने फिर भी कोशिश थोड़ी सी की है। जी जी, प्लीज प्लीज, कोशिश के लिए ही हमने प्रोवोक किया है। अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली। नहीं नहीं नहीं, गलती की बात नहीं है। आपने अटेम्प्ट किया, यही बात है, यही सबसे बड़ी बात है। जी सर बहार जी सुबुह जी उस में नीरे रंग जी गाॾीअ में हिकिड़ो माण्हू अचे थो। गुड। ॻाढ़े रंग जी फ्रॉक में हिकु छोकिरी रोड ते कुते खे घुमाईंदी ऐं परियल खड़िया ॿार हथनि में किताबनि सां ॾिसंदा। वण मलीर थींदा आहिनि ऐं घणा गुल भी लॻल हुन। ओके सर ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था। गुड, जबरदस्त, थैंक यू जी। आयशा खान। जी सर। जी सर सुनाओ। जी जी बिल्कुल सुनाए। हिक खूबसूरत सड़क ते हिक मोटर गाड़ी हलंदी रही आहे। होॾां कुछ ॿारनि बेठा आहिनि। हिन मां हिक नीरो रंग जो शर्ट मां छोकिरे जेके ॻाढ़ो रंग जी फ्रॉक वारी छोकिरी खे मुकालमो करे रहो आहे। हीअ मुकालमे ते छोकिरो छोकिरी खे चयो त पालन जानवर खे संभाल छॾियो। निगरी रोलर कोस्टर ते आहे ऐं इन जे साम्हूं हिक गाड़ी अची वई आहे। दैट्स इट। यस सर। थैंक यू, गुड, अच्छा अटेम्प्ट है, शाबाश। अफरोज साहिबा। जी सर। जी सर इन में आहे त जेकी तस्वीर आहे उन में इहो शो थियल आहे त हिकिड़ो ॿार आहे जेको मन छोकिरी जी हेल्प थो करण चाहे ऐं पोयां गाॾी में माण्हू वेठो आहे ऐं हिकिड़ी छोकिरी बि बीठी आहे ऐं छोकिरो बि बीठो आहे। उहे बीह करे वेठा था ॾिसनि, मीन्स के तमाशो पिया ॾिसनि, उन्हनि जी हेल्प नथा कनि। ऐं जेको नंढो छोकिरो आहे उहो छोकिरी जी हेल्प थो करे त पोयां हिकिड़ी गाॾी बि बीठी आहे, रोड बि आहे, किथे इनखे मन नुक़सान न थिए। मीन्स असांखे इहो ॿुधायो वियो आहे त इंसाननि ऐं जानवरनि जे बारे में त केॾी न मासूमियत सां असां जेके आहियूं
कंहिं कंहिं माण्हू में माना इहा शइ हूंदी आहे, कंहिंमें न हूंदी आहे। हाणे ॾिसो पोयां गाॾी में भाई वेठो आहे, उहो उनजी हेल्प नथो करे, चुप करे वेठो थो ॾिसे, माना उनमें इंसानियत कोन्हे। हिकु नंढो ॿारु आहे जेको उनजी हेल्प थो करे ऐं उनखे भाकुर पाए मीन्स के बचाइण जी थो करे, त कुतो बि बची वञे, उहा छोकिरी बि बची वञे। असांखे इहो थी तस्वीर सेखारे जानवरनि जे ऐं इंसाननि जे विच में, त माना कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, छा थो शो थिए। त माना इहो जेको अहसासु हूंदो आहे कंहिं कंहिं माण्हू में हूंदो आहे। हाणे वॾा सॾा माण्हू आहिनि, उन में ॾिसो न आहे, हाणे हिकिड़ो ॿारु छोकिरी जी हेल्प थो करे, पर एतिरो ई गुड, बस। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू अफरोज साहिबा, महिरबानी। एनीबडी वेलकम एल्स, एनीबडी वेलकम। एल्स ॿिए कंहिं कोशिश कई हुजे? एनीबडी एल्स कंहिं ॿिए कोशिश कई आहे? यस सर, जी आसिफ हुई इकबाल। जी आसिफ इकबाल साहब। सर, हिकु छोकिरी पंजनि पालियल कुती सां वॉक करी रही हो। सड़क के पार करी वक्त अचानक कुत्तो दौड़न शुरू कियो। छोकिरी परेशान थी वियो त सड़क थी गाड़ी तेजी सां आंदी रही हो। हक छोकिरी तेजी सां आयो ऐं कुत्ते की सड़क जी तरफ दौड़न सां रोकी। अहिड़ी तरह छोकिरी ऐं इन्हनि जो पालियल कुत्तो महफ़ूज़ रही। छोकिरनि जी कोशिश सां उही वॾी हादसी सां बची वियो। असां की घर जी ता पालियल जानवरनि जी संभाल सां पंजी बा एहतियात करियो। सर ये आपने गूगल इस्तेमाल किया है थोड़ा थोड़ा? जी सर, थोड़ा थोड़ा गूगल इस्तेमाल किया है? नहीं सर, ये मैंने खुद लिखा है। तो इसका मैंने घर उर्दू जी में सुना दूं मैं? नहीं नहीं, उर्दू में ना सुना है, मैं समझ गया। घर जी का मतलब क्या है? घर जी मैं नहीं समझ सका। व्हाट इज घर जी? घर में जो पालतू जानवर होते हैं, पालतू अच्छा, जानवर घर शुमार हो जी, रहा है ना ये, घर जी, ठीक है, पालियल जानवर। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात है कि आपने किसी ने कुत्ता कहा, किसी ने कुत्ती कहा, एक लफ्ज होता है वो सब नोट कर लें, गाफ लाम रे। गाफ लाम रे वो कहा जाता है पपी को, छोटे कुत्ते को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको कहा जाता है गुलर। गाफ पर पेश, लाम पर जेर, बल्कि लाम पर भी पेश, गुल नहीं, लाम पर जेर और रे पर पेश। गाफ और रे पर पेश, लाम पर जेर। गुलर मीन्स पपी, छोटा सा पपी या छोटा कुत्ता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है वो पपी दिखाया गया है, बड़ा कुत्ता नहीं है, तो उसके लिए गुलर इस्तेमाल होगा तो ज्यादा वो अप्रोप्रिएट होगा। वैसे तो खैर कुत्ता भी सही है, कुत्ती भी सही है, लेकिन गुलर इज मोर इनोसेंट, क्योंकि बच्चों की स्टोरी है तो उसमें गुलर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो नोट इट डाउन आसिफ इकबाल साहब, आप भी और सब इसको नोट कर लें कि गुलर लफ्ज जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। थैंक यू आसिफ इकबाल साहब फॉर योर इनपुट। फायजा साहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मैम जी फायदा। सर सिंधी वर्जन शेयर करणो हाँ, सिंधी वर्जन शेयर करणो। जी। हिकु ॾींहुं मां स्कूल वञी रही हुयसि त मूं ॾिठो रोड जे पासे हिकु नंढड़ी ॿार फीथनि वारा जूता पाए कुत्ते खे घुमाए रही हुई। साम्हूं वरी कार नंढड़ी अची रही ॿारड़ी, हुई। ॿारड़ी कर छो, जिते नंढड़ी आहे तो ॿारड़ी कयो, हिकु नंढड़ी ॿारड़ी। ॿारड़ी, जी ठीकु है। जी। ओचितो कुत्तो रोड ॾांहुं डोड़ण लॻो। नंढड़ी बि कुत्ते सां गॾु गहलजण लॻी। मूं डप में अखियूं ॿूटे छॾियूं। थोड़ी देर खां पोइ अखियूं खोलियमि त ॾिठमि हिकु नंढड़े छोकिरे ॿार खे बचाए वरितो। अगेन ॿारड़ी, हाँ, ॿारड़ी बचायो तो। ॿारड़ी खे बचाए वरितो। मूं सुख जो साह भरियो ऐं स्कूल ॾांहुं वधियसि, पर ज़हन में इहा सोच हुई, माउ पीउ एॾा लापरवाह कीअं छो आहिनि। थींदा आहिनि? अच्छा, सुख जो साह खयों करे छॾियो, छो वरितो थींदा? खयों खयों, सुख जो साह खयों। अच्छा, सुख जो हाँ, साह खयों। खयों। हाँ, इन स्टोरी जो उन्वान छा थो थी ओके। सघे तव्हांजी नज़र में? तव्हां जेका लिखी आहे उन जो उन्वान छा थो थी सघे? लापरवाही? लापरवाह माउ पीउ। न, लापरवाह माउ पीउ न, इन जो सोचिजो त इन जो उन्वान छा थो थी सघे। थैंक यू, शाबाश शाबाश ओके। फाइज़ साहिबा। शादी सिराज साहिबा।
जी सर। जी शादी साहब। सर मुझे, मैंने ज्यादा तो नहीं लिखा लेकिन जो लिखा है बता रही हूँ। जी जी। इन्हन तस्वीर में कुछ ॿारनि आहिनि जेकी खेॾी रहिया आहिनि ऐं हिकिड़ी गाॾी आहे जेकी रंग नीरो आहे ऐं इन्हनि तस्वीर में हिकिड़ो पिल्लो आहे जेकी रंग भूरो आहे। बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। सही। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक टू। आयशा तारिक साहबा, फायजा साहबा, आसिफ इकबाल साहब, अफरोज साहबा, वक्कास अली साहब, आयशा खान साहबा, शाजिया सराज साहबा और मोहम्मद हमजा साहब, यही थे। इन्होंने ही स्टोरी सुनाई। कोई रह तो नहीं गया नाम मुझसे, क्योंकि मैं नोट करता हूँ सारी चीजें। कोई रह तो नहीं गया? सर ता पढ़ी तो ना है ना वही। असां कुछ के वारो ॾींदासीं सुभाणे क्लास जे शुरुआत में वारो ॾींदासीं, छाकाणि टाइम ऑफ पे थे। और तव्हां इहो नोटेड डाउन कजो। इमरान साहब, आपने भी लिखी है? ठीक है जी सर, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं अब नंबर नहीं आ रहा था इसलिए। तो ये अगर हम कल पढ़ लें उसके क्लास की शुरुआत में, क्योंकि ये इट विल गो ऑन। ठीक सर, मैंने उन पर कमेंट नहीं किया, अभी जो है वो उन पर कमेंट नहीं किया। अच्छा, ये जो मैं कंक्लूड करूं इस कहानी के हवाले से, इसका जो रेस्ट ऑफ द सेशन है वो कल हम क्लास के स्टार्ट में करके उसके बाद मश्क करेंगे। मद वाली मश्क उसके बाद करेंगे। लेकिन 2-3 चीजें नोट कर लें जो आपने जो है जिनका ख्याल रखना है। जब आपको कहा जाए कि कहानी लिखें, तो मेरे 3-4 मेहरबानों ने कहानी के अंदाज में उसको लिखा कि एक दफ़ा मैं घर से निकली, या एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा, 2 दफ़ा, एक दफ़ा। तो वो ये हुआ कि एक बच्ची जो थी वो सड़क किनारे जा रही थी। तो मतलब ये आपने ये नहीं लिखना, कमेंट्री नहीं लिखनी कि इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है। सवाल ये नहीं है, ये गौर से सुने जो मैं बात बता रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है वो बताएं, कमेंट करें इस पर। कैप्शन नहीं लिखना है इसका, इससे स्टोरी बनानी है। यानी अगर स्टोरी हो उस पर ये तस्वीर हो तो ये उसके साथ बिल्कुल तो एक्यूरेट हुआ उन सां गॾु हुजे, उहा ॼण त उन ते ई ठहियल है, या इलस्ट्रेशन ॼण उन कहानी दिया। तो आप उसको एम्बियंस क्रिएट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्ची जो है वो एक गुलेर सां, एक पपी के साथ, एक छोटे कुत्ते के साथ या कुत्ते के साथ वो सड़क पर अचानक से निकली। और अपने पहियों की वजह से, हमने गेलण लफ्ज पढ़ा था, गेल जण या गेलण लफ्ज पढ़ा था, तो वो किस तरह से, नो मैटर आप पूरी सिंधी गलत लिखें, अटेम्प्ट किया आपने, ये आपको आफरीन हो। जिस किसी ने अटेम्प्ट किया, और सबसे ज्यादा शाबाशी उसको जिसकी मादरी जुबान सिंधी नहीं है, उसने अटेम्प्ट किया। एंड यू आर गेटिंग योर शाबाशी एंड एक्सीलेंट फॉर अटेम्प्टिंग इट। ये बड़ी बहादुरी का काम होता है कि एक जुबान आपको ना है, उसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको पता है कि आप आधे से ज्यादा गलत लिख रहे हो। अटेम्प्ट करने के मार्क्स होते हैं। यू हैव अटेम्प्टेड दिस इज अ ब्रेवरी, एंड आफरीन हो आपको उस अटेम्प्ट करने पर। यानी जिस किसी की भी मदर टंग नहीं है उसने अटेम्प्ट किया, तो मैं सबसे पहले उसको शाबाश दूं। लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई, जिस किसी ने पढ़ा उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, कि उसको स्टोरी के फॉर्म में लिखना है कि स्टोरी कैसे, ये करेक्टर्स हैं। अच्छा, एक चीज जो किसी की स्टोरी में नहीं थी, डायलॉग कोई नहीं था। मैं साइड में क्या लिखा है, स्टोरी या राइट डायलॉग्स। डायलॉग कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर ये जो लड़का है वो इसको कह सकता है, अरे 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 ये क्या कर रही हो, तुम गिर सकती हो। और बच्ची जो अपनी मौज में कह रही है, नहीं भैया नहीं, मुझे आदत है, मुझे स्केटिंग करनी आती है, मैं नहीं गिरूंगी, और ये मेरा पालतू कुत्ता है, और अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो पीछे बच्चे खड़े हैं, वो बच्ची, फर्ज करें मिसाल दे रहा हूं, वो बच्चे को कह रही है, अरे वो देखो वो कुत्ता, इसका कितना चालाक कुत्ता है, वो कैसे भाग रहा है। डायलॉग्स की कमी थी। यानी कहानी डायलॉग के बगैर कुछ नहीं होती। कहानी तो आपने लिख ली, लेकिन ऐड सम डायलॉग्स इनटू इट, कि आप उसमें डायलॉग्स ऐड करें, कि उसमें डायलॉग्स कहाँ कहाँ पर, बेशक भरमार ना हो उसमें, लेकिन डायलॉग्स जरूर हो उसमें। तो कहानी फॉर्म कीजिए, डोंट मेक अ कमेंट्री ऑफ द पिक्चर। और दूसरा ये कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किसको रेड फ्रॉक पहनी हुई है, गाड़ी का कलर कौन सा है, ये सब दिखाई दे रहा है। यू जस्ट नीड टू स्टैब्लिश ए स्टोरी, ठीक है। स्टोरी बोर्ड आप उसको बनाएं,
जिन्होंने लिखी है वो इम्प्रूव करें उसको, और जिन्होंने लिखी और नहीं पढ़ी वो इम्प्रूव फॉर्म जो है अपना कल पढ़ें। कल जैसे ही हम आगाज करेंगे तो वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे के बाद पहले इसको 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद हम मशक करेंगे, राइट। तो ये एक्टिविटी मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ ये भी मुझे कल बताइएगा। ज़ाहिर इसका एक रीज़न नहीं है, सिर्फ उसमें लैंग्वेज का रीज़न नहीं है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है। वुड यू लाइक टू टेल मी टुमारो? अपने जहन पर जोर दीजिए और मुझे बताइएगा। जब कभी आप अपनी स्टोरी बताने आए तो आप मुझे बता सकते हैं। जो अपनी स्टोरी रिफ्रेश करके कल दोबारा बताना चाहें मुख्तसरन, लेकिन मैं आपको बताया था कि 5 से 7 जुमलों के अंदर हो, ताकि अगर तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स हो तो उनसे हम सुन सकें। इज इट एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस और नॉट, बताइएगा। और फिर आप अपनी स्किल्स इसमें दरियाफ्त कर रहे हैं कि यार मुझे तो स्टोरी भी लिखने आती है, आई एम एन स्टोरी टेलर ऑल्सो। और आपको पता है कि आप में से जो टीचर्स हैं उनका स्टोरी टेलर होना कितना ज़रूरी है। उस्ताद ला बशरी ज़रूरी है, तामजा जिके भी उस्ताद है। आप में से जो भी इसातिज़ा हैं, एक तो उसको नफ्सियात का माहिर होना ज़रूरी है, बच्चे की नफ्सियात का इल्म होना और उसकी सतह पर आकर उसको समझाना ज़रूरी है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप उस्ताद हैं, मैं उस्ताद नहीं हूँ। आप उस्ताद हैं, आपका सारा दिन ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट से है। दूसरा, उसको एक स्टोरी टेलर होना चाहिए। एक उस्ताद अगर स्टोरी टेलर है तो वो मुश्किल से मुश्किल तारीखी हकीकत भी बच्चे को आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, उसके इंजेक्ट कर सकता है उसके जहन के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। बाकी रीजंस आप बताएंगे। यह है कि मैंने आपको एक्सप्लोर करने का मौका दिया आपके अंदर जो स्टोरी टेलर छुपा हुआ है, जो स्टोरी क्रिएटर छुपा हुआ है, जो स्टोरी राइटर छुपा हुआ है, जो नई स्टोरीज क्रिएट कर सकता है, तो वो छुपा हुआ है, उसको मैंने दरियाफ्त करने का एक मौका दिया। और इसके क्या क्या रीजंस थे, मैंने क्यों आपको ये दी। और इससे हटकर भी स्टोरीज ऐसी होंगी जिससे एक तरफ तो ये अंदाजा होगा, एनालिसिस होगा कि कितनी स्पोकन सिंधी आप बोल सकते हैं, कितनी स्पोकन सिंधी आप लिख सकते हैं। अगेन सर्विंग दोज 4 लैंग्वेज स्किल्स अगेन एंड अगेन। कल मुझे बताइएगा कौन से 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं और कहाँ कहाँ पर हम किस किस को टच कर रहे हैं, कैसे किसको सर्व कर रहे हैं, ये आप मुझे बताएंगे। और ये एक्टिविटी देने से आपको क्या क्या फायदे होंगे या क्यों, उनके रीजंस, पीछे रीजंस क्या हैं, कल जरूर बताएगा। क्योंकि कल का जो सेशन है वो हफ्ते का कंक्लूडिंग सेशन है, तो कल हम उसमें न सिर्फ मद की जदवल की मश्क करेंगे, बल्कि उससे पहले हम इस स्टोरी पर बात करेंगे जिनकी स्टोरीज रह गई हैं। मैं कल आई वुड लव टू लिसन टू दो स्टोरीज, और उसमें फिर जो जहाँ जहाँ पर जेर ज़बर पेश की, जहाँ जहाँ पर नौक पलक की गुंजाइश है, तो वहाँ पर हम उसको करेक्ट करेंगे, चाहे लैंग्वेज वाइज हो या कहानी की टेक्निक वाइज हो। और फिर आप ये भी ट्राई करेंगे, अगले हफ्ते ये भी ट्राई करवाएंगे, आगे चल कर ये भी ट्राई करवाएंगे आपसे कि तस्वीर ना हो, आपने एक कहानी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। तो फिर आप देखेंगे कि अरे मेरे अंदर तो मुझे अंदर तो एक कहानीकार निकल आए। आई कैन राइट स्टोरीज, I can tell these stories to my students. I can amaze them. I can amuse them. Amaze and amuse, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये आपके अंदर जो छुपी हुई स्किल है जिसका आपको नहीं पता, वो हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी है और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें से बेस्ट स्टोरी कौन सी है और फिर बेस्ट स्टोरी को हम किस तरह से हाईलाइट करते हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें जो है वो अभी हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ हमारे आइंदा हफ्तों में छुपी हुई। मैंने याद है मैं आपको बताया था कि आपसे कहा था कि एक पोस्टर भी आपने डिज़ाइन करना है, वो कौन सा डिज़ाइन करना है वो अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आर अवेटिंग फॉर यू। आई होप यू आर एक्साइटेड टू गो थ्रू ऑल दोज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आपको तवज्जो रहे। तो हम एक तरफ तो सर्व कर रहे हैं उसको, जो हमारा बेसिक कॉज है कि हम अपनी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स जो है, सिंधी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं डे बाय डे। ये कोशिश करें था तो रोज़ाना उस उनमें महारत हासिल करना है। ॿिए तरफ़ पंहिंजो पाण खे एक्सप्लोर करण जो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का चांस भी आपको दिया जा रहा है। आई होप कि यू विल एंजॉय दिस जर्नी। आपको याद है पहले क्लास में मैंने कहा था कि दिस इज अ वॉयज एंड दिस वॉयज विल बी, इट शुड बी अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट फॉर यू। सो आई होप कि सिर्फ रन ऑफ द मिल चीज़ें जो हैं या मोनोटोनियस चीज़ें जो हैं, उसके अलावा भी हम ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि इस पूरे कोर्स में आपके लिए हमेशा के लिए यादगार रहेंगी और फिर ये आपको काम आएंगी अपने स्टूडेंट्स से ऐसी एक्टिविटीज़ करवाने के हवाले से। आई होप यू एंजॉयड इट। If you have any sort of reflections, you may reflect and you may
extend your feedback always, but in short and crisp, concise and precise format. Thank you very much. मुझे कहते हैं आसिफ काजी और चाहता हूँ आपसे इजाजत, दुआओं का तलबगार हूँ। दिलों को जुदाई करें बनाएं। See you tomorrow at 5 PM इंशाल्लाह। लज़ीज़ बशत हयात और दुरुस्त की हालात मैंने ख्याल रखो, पंहिंजे आसपास रहने वाले माण्हुनि जो ख्याल रखो, पंहिंजी लर्निंग स्किल्स के इम्प्रूव करण जी भी कोशिश कजो। लख कुर्ब तव्हांजा बि नदीम साहब। थैंक यू सो मच। दिलियों खे जुदाई करें बनाएं। सदाई गॾिजे ना पेर ते ना ख़ैर। अल्लाह ने